Let's record to this computer. Yes, started the recording, everybody. Hey, everybody, we are live in stereo. So we are continuing our moles crash course marathon. We started off with interconversion and completed interconversion before iftar. And we said, I'll give you a quick recap. We said that a mole, now we've learned that a mole can represent a number, which is what? What is that number? That number is 6.02 into 10 raised to the power 23. And this can literally be anything. A mole represents the volume of any gas at room temperature and pressure, and that's going to be either 24 decimeter cube, aka 24 liters, or 24,000 centimeter cube, aka 24,000 milliliter. A mole can also represent, if you want to find the volume, right? You can also find the mass with the help of moles by taking the moles and multiplying it by the molar mass, right? And then we learned that, you also have a hidden relationship in this. You also have a hidden relation between मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में अब वो रिलेशनशिप अगर मॉलिक्यूल्स गिवन है और एटम्स मांगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इट इनटू मोल्स ऑफ एटम्स एंड देन कन्वर्ट इट इनटू number of atoms done and then in the fifth relationship last but not least we learned for solutions you're going to use n equals cv to find the relationship between concentration volume and moles and whatnot. So if you have moles if you have moles and you want to find the number of particles, you take the moles times it by 6.02 into 10 to the power 23, which is called as the Avogadro's constant. If you want volume and you have the moles, you take the moles and times it by 24 or 24,000 centimeter cube. But remember, this only works for gases at room temperature and pressure, right? Only for gases, right? And then at the end, you also, if you want to find the mass, you take the moles and times it by the molar mass. How do you calculate the molar mass? From the periodic table. How do you calculate the molar mass? From the periodic table. And that's your number, that's your volume. And as that, sir, राज पता लग गया छोड़िए सर पढ़ाई नर्ड्स का काम है वो नहीं अस्करी क्या कह रहा है Sir, the least we could do is tell everybody about you. You're so awesome. I literally have told everybody you need more recognition. Too underrated. आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा थैंक यू यार खुश रहो खुश रहो खुश रहो शामीन सिंह ट्रू सर थैंक यू शामीन थैंक यू गाइस सर अस हुएवर सेड दैट थैंक्स एवरीबॉडी अच्छा अब आगे बढ़ते हैं ये हमारी सारी रिलेशनशिप्स में हमने कुछ सवाल भी किए थे राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोइकियोमेट्री व्हाट इन द हॉली मॉली वर्ल्ड इज स्टोइकियोमेट्री मोल्स खत्म हो गए अब स्टोइकियोमेट्री पे आ जाते हैं व्हाट इज मेंट बाय स्टोइकियोमेट्री Stoichiometry is made up of two words, stoichion and metry, right? Stoichion literally means elements and metry means measurement, right? So the literal term for stoichiometry is the measurement of elements, right? But we don't use it in such an order. Why am I stuttering? We don't use it in this the manner of its literal definition. We use it in the manner of its implied definition. What do we mean by stoichiometry implicitly? हमें क्या मतलब पता लगता है stoichiometry से? स्टोइकियोमेट्री देखिए इसको आसान समझने के लिए इसको स्टिचिंग सीखे स्टोइकियोमेट्री तो आपके जहन में स्टिचिंग आनी चाहिए क्या जब आप धागा से स्टिचिंग करते हैं राइट सो स्टोइकियोमेट्री इज लिटरली स्टिचिंग बिटवीन व्हाट एंड व्हाट between reactants and products. For example, I say you have methane gas and it reacts with oxygen, it is going to give you carbon dioxide and H2O, right? And if I were to balance this equation, I'm just giving you the balanced equation, right? इधर एक सी है दो ओज हैं दो ओज हैं चार सीज चार एचेस हैं इधर तो इधर आपके पास दो हैं दो को किससे मल्टीप्लाई करूं कि चार है x इज इक्वल टू 4/2 दैट्स 2 राइट सो आई एम गोना ऐड 2 हियर बैलेंसिंग आपको फिलहाल आनी चाहिए अभी के लिए अगर नहीं आती तो कोई और चैप्टर्स देख लें मैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशंस ही दे दूंगा क्योंकि मेरा काम है आपको मोल सिखाना स्टोइकियोमेट्री सिखाना ना कि आपको मैं बैलेंसिंग सिखाऊं तो मैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशंस ही दूंगा अच्छा so stoichiometry implicitly means what? It's stitching. Stitching what and what? Stitching reactants and products. And how do you stitch reactants and products? वो अल्लाह ताला ने आपके लिए पहले से किया हुआ है through these balanced equations. तो यूनिवर्स में क्या होता है जब आप मीथेन गैस लेते हैं in this universe if you take methane gas and you react it with excess oxygen it's going to undergo combustion. You've studied this in your organic chemistry. So it undergoes combustion gives you carbon dioxide and H2O. Now the coefficients here ये 1 1 1 जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है 1 these coefficients represent moles right तो ये जो coefficients है ये moles को represent करते हैं जनाबे वाला अब moles क्या मतलब है इसका इसका मतलब है कि 1 mole of methane will react with 1 mole of oxygen to give you 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water
दिस आपको ये कैसे पता चलता है? आपको ये नेचर में पता लगता है। और नेचर कौन डिसाइड करता है? लॉर्ड ऑलमाइटी। तो अल्लाह ताला ने ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनाया, अल्लाह ताला ने हर चीज बैलेंस बनाया है। वो अलग बात है कि हम पहले इक्वेशन लिखते हैं फिर बैलेंस करते हैं। इन द यूनिवर्स व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, मैं बताता हूँ यूनिवर्स में कैसी रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे होता है? 1 mole of methane comes into contact with 1 mole of oxygen, they react together to give you 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। हम क्या करते हैं? हम पहले इक्वेशन लिखते हैं फिर उसको बैलेंस करते हैं। सो रिमेंबर इन स्टोइकोमेट्री you need balanced equation because you're stitching reactants with products and reactants with each other and products with each other, right? Now what is the purpose of this stitching? What is the purpose of this stitching? इसका पर्पस क्या है? अगर मैं आपको सिंपल से कहूं कि यार अगर मेरे पास 20 ग्राम मीथेन के हों और मैं आपसे कहूं कि सर 20 ग्राम ऑफ मीथेन को अगर मैं जलाऊं, अगर 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन को मैं कंबस्ट करूं, हाउ मच मैस how much mass of H2O can I get? How much mass of H2O can I get? Now, if you have methane and you want the mass of H2O, logically think methane और H2O का कोई रिलेशनशिप है? सिंपल बात है। ये तो इंटर कन्वर्जन तो नहीं है। इंटर कन्वर्जन क्यों नहीं है? बिकॉज ये मेथेन के अंदर आप नहीं खेल रहे। यू आर नॉट प्लेइंग बिटवीन मेथेन के मॉलिक्यूल्स, मेथेन के एटम्स। नो, यू वांट टू गो फ्रॉम मेथेन टू H2O। व्हाट डू यू नीड? You need a stitch, and that's called stoichiometry. So you need to somehow stitch these two things together to jump from methane to water. And how do you need, how can you stitch these two to jump from methane to water? How can you stitch these two? Sir, you know that from the equation, if you look at the equation, you see that 1 mole of methane would give you 2 moles of water. 1 mole of methane, they are stitched in such a way that 1 mole of methane gives you 2 moles of water. Now, the relationship is in terms of mole, but the data that the examiner has given you is in terms of mass. लेकिन रिलेशन तो मोल्स के बीच में। तो अब मैं क्या करूंगा? द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक दिस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मोल्स। So remember, the first step is always to convert in stoichiometry, convert the data into moles. Why do you need to convert these into moles? Because you need to stitch them, और stitching तो सिर्फ moles में हुई है, तो इसको भी moles में convert करें जनाबे वाला। So convert the data into moles, and the second step is stitch them through the balanced equation. So stitch करें, stitch की ये spelling है, stitch them through the balanced equation. That is literally what stoichiometry is done. और the third equation is, फिर एक दफा moles of पानी पता लग जाएंगे, उसके बाद convert करें into what the question requires. Convert into questions requirement। ये 3 स्टेप्स स्टोइकोमेट्री में फॉलो होते हैं और बड़ी सिंपल सी बात है। आप देखते हैं कैसे करते हैं। यू आर गिवन 20 ग्राम्स ऑफ मैथिन। यार एक सेकंड चौधरी साहब, प्लीज कुड यू लोअर योर हैंड, ताकि मैं ये कर लूँ फिर आपका जवाब दे देता हूँ यार। सर ये बैलेंस तो नहीं है, O2 है। अच्छा हाँ हाँ, बैलेंस बैलेंस कर ले, बैलेंस कर ले, बैलेंस ये ले बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक O2 ये है, दो ये हैं, तो दो ये हैं और दो ये हैं, चार हैं, तो इधर चार होने चाहिए, राइट? 2 × 2 दैट्स 4। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, नाउ बिकॉज O2 के साथ हमारा काम नहीं है ना। अच्छा, अब देखिए व्हाट डू यू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स, कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स। ये डेटा आपके पास गिवन है 20 ग्राम, 20 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करें। मैस इक्वल मोल टाइम्स मोलर मैस। तो मैस कितना है जनाब वाला? 20 ग्राम। मोल्स कितना है वो निकालने हैं सर। मोलर मैस ऑफ मेथिन, व्हाट्स द मोलर मैस ऑफ मेथिन? मेथिन इज कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, एंड टाइम्स इट बाय 4 बिकॉज यू हैव 4 H's। व्हाट डू यू गेट? 16। So that 16 is the molar mass. N is equal to 20 divided by 16. How many moles do you get? How many moles do you get, sir? 20 divided by 16 लिखना है एग्जाम में। 1.25, 1.25, these are the moles of what? These are the moles of methane. But do you need the moles of methane? Do we need the moles of methane? Yes, no? Do we need the moles of methane? No, we don't. What do we need? We need the moles of H2O. So now we need to jump from methane to H2O. We need to jump from methane to H2O. And how do we do that? We do that by stitching methane with H2O, and that is through the balanced equation. The second step is always balanced equation. से अब मैं methane से छलांग मार के जाऊंगा H2O में. And how do I do this? I say, hey, 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen, but it gives me 2 moles of H2O. 1 mole of methane gives me 2 moles of H2O. तो 1 मोल ऑफ मेथेन मुझे क्या दे रहा है? 2 मोल्स ऑफ H2O दे रहा है। तो जनाबे वाला, अगर मेरे पास इतने मेथेन हैं, मेरे पास एक्चुअली कितने प्रेजेंट है? 1.25। तो 1.25 से कितने मोल्स ऑफ पानी बनेंगे? N इज इक्वल टू 1.25 क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? 1.25 टाइम्स 2, व्हाट डू गेट? What do you get? 2.5? 2.5। ये क्या आ गए? These are the moles of H2O. But you don't need moles of H2O. You need what? You need mass of H2O. तो आप इसको convert करें into what the question requires. Question says भाई convert करो इसको किस में? इसको convert करो mass में। तो mass में convert करें, mass equal mole times molar mass।
सर मैस कितना आ गया जनाब वाला, वो फाइंड करना है। 2.5 इज द मोस्ट मोलर मास ऑफ पानी, H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज 1 टाइम्स इट बाय 2 बिकॉज यू हैव 2 H's, और ऑक्सीजन इज 16, तो कितने आ गए 18। 2.5 टाइम्स 18, व्हाट डू गेट, व्हाट डू गेट 45, श्योर, तो 45 ग्राम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर, अगर आप मेथेन लोगे कितने ग्राम्स, अगर आप 20 ग्राम्स ऑफ मेथेन लोगे, इफ यू टेक 20 ग्राम्स ऑफ मेथेन, हाउ मच वाटर इज गोना फॉर्म, 45 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो पहला स्टेप क्या गया, कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स, सेकंड स्टेप स्टिच देम थ्रू द इक्वेशन, बिकॉज यू डोंट नीड मेथेन, यू नीड, सिर्फ एक नया स्टेप आया स्टोइकियोमेट्री में, सिर्फ एक नया स्टेप आया है स्टोइकियोमेट्री, स्टिचिंग, एक नया स्टेप आया स्टिचिंग का। बाकी ये क्या है, ये भी इंटर कन्वर्जन है, ये भी इंटर कन्वर्जन है, सिर्फ एक स्टेप है स्टिचिंग। कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स, यूज द इक्वेशन टू फाइंड द मोल्स ऑफ अननोन, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स, इट दैट्स इट। अब मैं इसके सारे सवाल कराऊं, ये लो करा देता हूं, ये लो करा देता हूँ। अच्छा, बिफोर आई डू दिस, आई वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन, आई वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन। लेट्स सपोज आई से यू हैव 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 mole per decimeter cube of hydrochloric acid, which reacts with sodium hydroxide to give how many mass, how much mass, how much volume, बल्कि volume नहीं, reacts with sodium to give you how much volume of hydrogen gas। और इक्वेशन होगी कि नहीं, इक्वेशन होगी कि नहीं, डू यू नीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस, यस नो, डू यू नीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस, यस नो, खुद सोचिए, स्टोइकियोमेट्री का सवाल है, स्टिचिंग करनी है कि नहीं, आपको इंटर कन्वर्जन करना है। ऑब्वियसली नो, नो क्वेश्चन मार्क शामी, नो, यस, बी कॉन्फिडेंट से यस, क्यों, सर HCl से मुझे H2 में जाना है, दे मुझे किस चीज से जाऊं, क्या इस्तेमाल करूं, हाउ डू आई स्टिच HCl टू H2, तो मैं कहता हूं टेंशन ना लें, बैलेंस्ड इक्वेशन दे देता हूं। सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव यू व्हाट, इट गिव्स यू NaCl प्लस H2, जनाबे वाला ये ले लो, बैलेंस करके इक्वेशन में आपको दे देता हूँ, ये दो आ गए, ये दो आ गए, ये दो आ गया, खुश हो जाओ। तो मैं आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दे रहा हूँ। इक्वेशन के बगैर स्टिचिंग कैन नॉट हैपन, यस यू नीड टू गो फ्रॉम HCl टू हाइड्रोजन ना, तो कोई कोई तो कुछ तो होना चाहिए ना, इक्वेशन होनी चाहिए स्टिच कर। अगर मैं कहता कि ये आपके पास HCl है एंड फाइंड मी द मास ऑफ HCl, फिर स्टोइकियोमेट्री की जरूरत होती, फिर स्टोइकियोमेट्री की जरूरत होती, HCl का डेटा गिवन और मैं कह रहा हूँ मैस बताओ HCl का, मैथ्स दो नहीं, फिर स्टोइकियोमेट्री की जरूरत नहीं है, व्हाई, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद इन HCl, बट नाउ आई डोंट वांट टू प्ले विद इन HCl, आई वांट टू गो फ्रॉम HCl टू हाइड्रोजन, सो आई नीड टू स्टिच दीस टू, एंड हाउ डू यू स्टिच दीस टू, यू स्टिच देम थ्रू ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जनाब वाला, द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स, डेटा क्या गिवन है, डेटा मेरे पास वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन है, तो वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन से मैं कैसे जाऊं मोल्स में, N इज इक्वल टू CV, सर मोल्स निकालने हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं 2, वॉल्यूम कितना है 20, एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब को पहले DM क्यूब में कन्वर्ट करें बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, सर N इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 1000, क्या आ रहा है, ये क्या फाइंड करें, HCl का, आई एम कन्वर्टिंग द डेटा, द नोन डेटा इनटू मोल्स हैं, निकालें जी क्या आ रहा है, 2 into 20 डिवाइड बाई 1000, 0.4 आ रहा है, 0.04, 0.04 मोल्स। प्लीज मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो कैलकुलेटर सही इस्तेमाल करे, दीज आर द मोल्स ऑफ HCl। सर डू यू नीड मोल्स ऑफ HCl, डू यू नीड मोल्स ऑफ HCl, डू यू नीड मोल्स ऑफ HCl, नो, व्हाट डू यू नीड, यू नीड, यार मुझे तो HCl नहीं चाहिए, मुझे तो H2 चाहिए, सो नाउ द स्टेप कम्स स्टिचिंग द टू, कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स, नाउ यू नीड टू गो फ्रॉम HCl, देखिए HCl और हाइड्रोजन, हाउ आर दे कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस बैलेंस इक्वेशन, कनेक्शन कैसे इन दोनों में, थ्रू मोल्स, 2 मोल आपको 1 मोल देगा, तो जो आपके पास डेटा है वो भी मोल्स में होना चाहिए। तो आप सेकंड स्टेप क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टिच दीज टू, तो आपको पता है सर HCl और हाइड्रोजन को अगर मैं स्टिच करूं तो 2 मोल्स ऑफ HCl से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनता है, दैट्स द स्टिचिंग, और 0.04 हमारे पास इधर मौजूद है, तो 0.04 से कितना बनेगा, N क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू गेट। और अगर आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा तेज है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू गाइस आर गुड विद मैथ, आप कह सकते हैं यार 2 से अगर 1 बन रहा है तो आधा बन रहा है, 2 से आधा बन रहा है, तो 0.04 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर लो, लेकिन बेहतर है कि ऐसे कर लें अगर आपकी मैथ कमजोर है, तो N इज इक्वल टू व्हाट, 0.04 डिवाइड बाई 2, व्हाट यू गेट 0.02। ये क्या चीज आ गया, दीज आर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए, अब मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, थर्ड स्टेप, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने रिक्वायर किया कि भाई मुझे वॉल्यूम दो हाइड्रोजन का, तो वॉल्यूम गैस है, गैस गैस का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू N टाइम्स 24 DM क्यूब, पार्ट 1 में ये सारा किया हुआ है, 0.02 टाइम्स 24, व्हाट डू यू गेट पीप्स, मैं अपने पास भी कैलकुलेटर रख देता हूँ, आपका थोड़ा आंसर स्लो आता है यार, 0.48 DM क्यूब,
लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे सेंटीमीटर क्यूब में जवाब दें, फिर 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 24 की जगह 24,000 होता है, और या फाइनल आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 480 सेंटीमीटर क्यूब। अगर सीएम क्यूब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन होगा HCl का, और ये वॉल्यूम होगा, इस कॉन्सेंट्रेशन और इस वॉल्यूम से अगर ये रिएक्शन हो रहा हो, तो इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बनेगा? 480। सब करेंगे, सब करेंगे नौफल, सब करेंगे। कोशिश मैं अपनी पूरी करूंगा, 9 बजे तक क्लास है, खत्म करूंगा इंशाल्लाह। खत्म। आ जाए हम जरा क्वेश्चंस देख लें स्टोइकोमेट्री की, दो तीन ही करूंगा बस, खत्म। ये तो सिंपल इंटर कन्वर्जन है, ये आपने कर ली, मैंने आपके साथ क्लास में। स्टोइकोमेट्री, सर पहला स्टेप देख लीजिए। Manganese oxide is added to 20 centimeter cube of aqueous hydrogen peroxide. The total volume of gas produced is 72 centimeter cube at room temperature and pressure. गैस क्या है आपके पास? ऑक्सीजन है, तो सर 72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन बना है आपके पास। वो कह रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन peroxide इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। अब वो आपको आप स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है। हालांकि अगर ए लेवल्स होता तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप ना लेके जाता, लेकिन वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है स्टेप बाय स्टेप? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये स्टेप्स ना होते तो मैं कैसे करता? मेरे पास नोन डेटा क्या है? 272 डेसीमीटर क्यूब। आई हैव 72, ओ सीएम क्यूब है, सॉरी 72 सीएम क्यूब है, ठीक है ठीक है। आई हैव 72 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। मैं क्या करता? पहले मैं नोन डेटा को मोल्स में कन्वर्ट करता। आई वुड गेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। वंस आई वुड हैव गॉटन द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आई वुड यूज द इक्वेशन टू स्टिच द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन peroxide की मोल्स। हाइड्रोजन peroxide की मोल्स आ जाएंगे मेरे पास, और एक दफा मोल्स आ जाएंगे, वॉल्यूम मुझे गिवन है n इज इक्वल टू CV, मोल्स भी आ गए, वॉल्यूम भी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, डन, दैट्स इट। और वो आपको अब स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे, तो कह रहे हैं सर स्टेप वन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस। तो कैलकुलेट करें सर, V इज इक्वल टू n टाइम्स 24 और 24,000, इट्स इन सीएम क्यूब, सो 24,000 है। वॉल्यूम कितना है? 72, मोल्स निकालने हैं, इंटू 24,000, क्या आ रहा है जनाब? n इज इक्वल टू 72/24,000। आपको पता है आपको मार्क किस चीज़ का मिलता है? इस चीज़ का। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो बच्चे करते हैं, मार्क इस एक्सप्रेशन का मिलता है। क्या आ रहा है वॉल्यूम? मोल्स बताएं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? हाँ जी, शाबाश शाबाश, जल्दी बताएं। 0.003, 0.003 मोल्स। कितने जीरोस हैं यार? शामीन यू आर सिंग 3 जीरोस, क्या हो गया? 72 डिवाइड बाई 24,000, 3 × 10⁻³ है। 10⁻³ मतलब है 3 डिवाइड बाई 1000। जीरो की जगह जीरो आ गया, इस जीरो की जगह ये, जीरो की जगह ये, इस जगह पॉइंट, 0.03, नॉट 0.003। अच्छा, ये मोल्स आ गए मेरे पास, 0.003 मोल्स, डन। अगेन वही स्टेप्स वो आपको फॉलो करवा रहे हैं। स्टेप्स, फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन peroxide विच रिएक्ट्स विद दिस many मोल्स। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यूज द इक्वेशन, स्टिच कराना चाह रहे हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स इज फाउंड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन peroxide। तो अगर 0.03 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन peroxide आर देयर? n क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू गेट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.003। प्रार्थना आप बताएं यार, आप अभी तक सही बता रहे हैं। हाँ जी, 0.006, डन। दीज आर द मोल्स ऑफ H2O2। अब कह रहे हैं सर कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? n इज इक्वल टू CV, मोल्स आपने कैलकुलेट किया है। सर तो वॉल्यूम किधर गिवन है? वो इधर इधर उठा के दिया हुआ है, ये देखो, 20 सीएम क्यूब ऑफ एक्वस हाइड्रोजन peroxide। तो 20 सीएम क्यूब है, इसको कह रहे हैं डीएम क्यूब में दो, मोल पर डीएम क्यूब को, तो सीएम क्यूब को पहले डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000 है। अच्छा, तो क्या आ रहा है सर? C इज इक्वल टू 0.006 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइड बाय 1000, क्या आता है? वो कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। 0.02। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है? ये मोल्स है, ओहो, ये मोल है, और ये पर डीएम क्यूब है। क्या आ रही है कॉन्सेंट्रेशन सर? 0.3, 0.3 मोल पर डीएम क्यूब। अब वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मुझे ग्राम पर डीएम क्यूब में दें। तो मोल्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैस इक्वल मोल टाइम्स मोलर मैस, दैट्स द रिलेशनशिप। मैस कितना है निकालना है, मोल्स गिवन है 0.3, मोलर मैस कितना है? व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन peroxide? H2O2 है सर, तो हाइड्रोजन इज 1 टाइम्स इट बाय 2 बिकॉज यू हैव 2 H's, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स इट बाय 2 बिकॉज यू हैव 2 O's। ऐड देम टुगेदर, क्या है? 32 + 2 दैट्स 34, 34। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 34 क्या आ रहा है? हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। 10.2, तो 10.2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, खत्म। आसान के मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है?
सर मैं मास कैसे फाइंड किया, मास कैसे फाइंड की, इजी 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 किडोज, मास ऐसे ही फाइंड किया जैसे मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते, ऊपर मैंने इंटर कन्वर्जन पूरी करा दी। इंटर कन्वर्जन में मास से मोल, मोल से मास में कैसे जाते, व्हाट्स द रिलेशन, मास इक्वल मोल टाइम मोलर मास। मोलर मास निकाल दिया, मोल्स मेरे पास ऊपर कैलकुलेट करके हैं 0.3 है ना, इसमें 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो 0.3 मोल्स हैं इसमें। डन। आगे बढ़ूं। तो ये सबसे मुश्किल सवाल आ सकता था जो अभी टेस्ट हुआ है। सिमिलरली ये देखिए, डाइल्यूट ईथर ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ बकवास है, ब्ला ब्ला ब्ला। 3.18 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। 3.8 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट को मोल्स में कन्वर्ट करे, देन यूज स्टिच देम। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ओहो यार ये तो अब मुझे नजर नहीं आ रहा। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट वुड गिव यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल, तो जो इसके मोल्स होंगे वो इसके भी होंगे, फिर कन्वर्ट करो वॉल्यूम में। वेट, आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग बिकॉज मेरा जो स्क्रीन है ना वो ग्लिच कर गया है, मुझे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको शायद नज़र आ रहा हो, मुझे नहीं आ रहा। लेट मी जस्ट, दोबारा इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। हाँ जी, अब सही हो गया। हाँ, नाउ इट्स फाइन, अब सही हो गया। तो देखिए यार, 3.18 ग्राम्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करें, मैस को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैस इक्वल मोल टाइम्स मोलर मैस। अब किसने ये पूछे कि किधर से आया, तो किडो मैंने पूरी इंटर कन्वर्जन करा दी है। 3.18 ग्राम्स मोल्स निकालने हैं, मोलर मैस क्या है, सोडियम कार्बोनेट का निकालने हैं ना, मोलर मैस निकालिए, सोडियम इज 23 टाइम्स इट बाई 2 बिकॉज यू हैव 2 ends, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स इट बाई 3 बिकॉज यू हैव 3 O's। शाबाश, जल्दी बताएं। सर रोनाल्डो या मेसी, नाइदर सर सुलेमांडो। 23 टाइम्स 2 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3 क्या आ रहा है, 106। हाथ जल्दी हिलाएं, शाबाश। एन इज इक्वल टू 3.18 डिवाइड बाई 106, ये क्या है, किसके मोल्स फाइंड कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के। अपनी लिए लिखा करें कि कंफ्यूज ना हो, वैसे भी एग्जाम में इतना प्रेशर आप पे होता है कि वैसे तो मैं कहता हूँ प्रेशर ना लें, लेकिन इतना होता है तो लिखा करें। अब क्या चाहिए, यू डोंट नीड सोडियम कार्बोनेट, यू नीड टू जंप फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, सो द सेकंड स्टेप इज यूज द इक्वेशन। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स यू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर 0.03 होंगे तो कितने मोल्स देंगे, ऑब्वियसली द सेम विच इज 0.03, तो 0.03 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, v इज इक्वल टू n टाइम्स 24, लेकिन कह रहे सेंटीमीटर क्यूब में बताओ, तो 24 नहीं 24,000 है। वी फाइंड करना है, मोल्स कितने, 0.03 टाइम्स इट बाय 24,000, व्हाट डू वी गेट, 720। तो मतलब ये आपकी स्टोइकियोमेट्री खत्म हो गई, फिनिश्ड, खत्म। एक और सवाल कराऊं, सारी स्टोइकियोमेट्री खुदा की कसम यही है। Convert the data into moles, use the equation to stitch the two and find the moles of the unknown and convert it into whatever the question requires। और देख लो, और जो मर्जी देखना है यही है, देखो आपको क्या दिए, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, बस सिर्फ सवाल बदल अलग है, वो चीज तो वही है। यूर गिवन वॉल्यूम, यूर गिवन कॉन्सेंट्रेशन, देखो एन इज इक्वल टू सी वी से आपने हाइड्रोजन पर निकाल देने मोल्स, मांगा क्या हुआ है, मांगा क्या हुआ है, चांगा मांगा, मांगा ऑक्सीजन है, तो वंस यू गेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर स्टिच दीज टू, यूज द इक्वेशन टू स्टिच दीज टू। 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो इतने मोल से कितने बनेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। और कन्वर्ट करो जो क्वेश्चन चाह रहा है, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं मुझे मास दे दो, मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास, कुछ भी नहीं है, स्टोइकियोमेट्री में सिर्फ एक इक्वेशन से स्टिचिंग आ जाती है और कुछ भी नहीं है। बाकी इंटर कन्वर्जन है, इसलिए मैंने पहले इंटर कन्वर्जन सारी कराई है, डन। अच्छा वही है, कैलकुलेट द मोल्स, एन इज इक्वल टू सी वी, मोल्स निकालने, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2। बस गलती बच्चे क्या करेंगे, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये सीएम क्यूब है, ये अगर दोनों सीएम क्यूब होते फिर मसला ना होता, या दोनों डीएम क्यूब होते फिर मसला ना होता, तो एक डीएम क्यूब एक सीएम, तो कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेसीमीटर क्यूब, हाउ डू यू डू इट, बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000 है। खत्म, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 1000 क्या आ रहा है, जल्दी बताएं, शाबाश। 0.05, 0.05, खत्म। और डिटरमिन द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वही स्टिचिंग, 2 मोल से अगर 1 मोल बन रहा है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.05 मोल से कितना बनेगा, एन क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू गेट, 0.05 डिवाइड बाय 2, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 सर पहले गलत लिखा है, पहले गलत है, 0.0, यार ये भी मैं करूंगा यार, 50 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये 0.01 है यार। कैलकुलेटर तो आप लोग इस्तेमाल करो ना यार, वेरी बैड। 0.01 डिवाइड बाई, ये तो 0.0,
05। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आता कि 0.005 या क्या, 5 × 10⁻³ ही लिख दे। लेकिन फिर भी नहीं आते, तो मैथ्स की टीचर का ये काम था, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ×10⁻³ का मतलब डिवाइड बाय 1000। तो इस जीरो, हमें तो बचपन में यही सिखाया था कि फाइव, जीरो की जगह 5 है, इस जीरो की जगह कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, जीरो की जगह कुछ नहीं है ये लगा दो, और फिर 1 की जगह पॉइंट लगा दो। सर अभी भी गलत है क्या? क्या गलत है? क्या गलत है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश जल्दी बताओ। सर ठीक है, ठीक है। कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करो, मैंने तो इस्तेमाल किया, मेरा तो सही है। V = N × 24,000। ओके, अच्छा, वॉल्यूम नहीं मांग रहा, मैस मांग रहा है। मैस का क्या है? मैस इक्वल मोल टाइम्स मोलर मैस। मैस निकालो सर। मोल्स गिवन है 0.05 मोल्स है, 0.005, सॉरी, 0.005 मोल्स है। और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स इट बाय 2 बिकॉज इट्स O2, राइट? ऑक्सीजन होता ही O2 है, तो मल्टीप्लाई करें इसको 32 के साथ। क्या है? 0.16। 0.16। खुश? खत्म। ये पूरी स्टोइकियोमेट्री है आपकी। कन्वर्ट अब आसान हो गया। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊं, नेक्स्ट टॉपिक लिमिटिंग एंड एक्सेस पढ़ाऊं? शाबाश, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। खत्म स्टोइकियोमेट्री। डेटा गिवन है, मोल्स में कन्वर्ट करो, यूज द इक्वेशन टू स्टिच। और एक और सवाल, चलो जी, ये लो आपकी फरमाइश पे। ये आपके पास डेटा गिवन है, क्या करो? कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स, यूज द इक्वेशन टू स्टिच ए सल्फ्यूरिक एसिड टू हाइड्रोजन। एक मोल से एक मोल बनता है, तो जो यही मोल्स होंगे वही हाइड्रोजन के मोल्स होंगे। और फिर मांगा क्या हुआ है? हाइड्रोजन का वॉल्यूम मांगा है, V = N × 24। खत्म। आगे बताएं। और बताएं। 22.34 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज एडेड। नोन डेटा क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, सॉरी, तो पोटेशियम को मोल्स में कन्वर्ट किया। यूज द इक्वेशन टू स्टिच द मोल्स ऑफ पोटेशियम टू व्हाट? हाइड्रोजन मांग रहे, तो 2 मोल से एक बनेगा, इतने मोल से कितना बनेगा? वो आ जाएगा V = 24,000, बिकॉज CM³ में मांगा है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। और बताओ, और बताओ। और वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है। और करूं, और करूं? ये लो। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये थोड़ा नया है ये, बल्कि इसमें क्या है? Calculate the concentration of sodium hydroxide formed in gram per decimeter cube when 0.35 gram of sodium is added to this much distilled water. ग्राम्स ऑफ सोडियम है, उसको मोल्स ऑफ सोडियम में कन्वर्ट करें। मोल्स ऑफ सोडियम आ गए, उसके बाद स्टिच मोल्स ऑफ सोडियम टू मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गए। एक दफा ये आ गए, तो थर्ड स्टेप क्या है? कन्वर्ट इट इनटू व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स। क्वेश्चन मार्क क्या मारे? कॉन्सेंट्रेशन N = CV। मोल्स आपके पास हैं, वॉल्यूम आपके पास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन बनना है वो 50 cm³ में बनना है। मोल्स हैं, वॉल्यूम है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। अगला बताऊं, और कराऊं, और कराऊं? When 20 centimeter cube of hydrochloric acid zinc is added to excess zinc, the volume of hydrogen produces in volume of hydrogen आ गया, इससे moles of hydrogen निकालो। V = N × 24,000। more of hydrogen के बाद again stitch the second step, use the equation to stitch। हाइड्रोजन से आप किधर जाना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाना है। मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गए, मोल्स और वॉल्यूम है दोनों को, N = CV आपके पास आ जाएगा। समझ आ गया? और कराऊं, और बताओ? और जबानी करा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जबानी कराऊं, और सवाल कराऊं, और कराऊं? तीन ही तो स्टेप्स है। कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स, यूज द इक्वेशन टू फाइंड मोल्स ऑफ अननोन, एंड द थर्ड स्टेप इज कन्वर्ट इट इनटू व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स। और कराऊं, और कर रहा हूँ। 25 सेंटीमीटर मैं जबानी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आसान है ना, बस ना, आप तो करा दिए हैं, वही स्टेप्स है। 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। अच्छा, ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मुझे पता था यही आना है। चलो ये सवाल देख लो भाई। वैसे तो मैंने करा दिया, उसी ऊपर भी हमने किया है, लेकिन चलो अब ये ऊपर हमने ये किया हुआ है। लेकिन चूंकि सवाल मुख्तलिफ है, उसकी शक्ल बदल गई है, तो ओ माय गॉड अब करा दें। ये मोल्स को हमने ग्राम्स में नहीं किया। लेकिन ओ हो, नया सवाल आ गया, तो अब दोबारा देख लेते हैं। चलो दोबारा देख लेते हैं। ये चीज अच्छी नहीं है यार कि आप कॉन्सेप्ट को छोड़ के सवालों के रट्टे मार रहे हो। अच्छा, तो 0.345 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज देयर, तो क्या करें सर? वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके भी जा रहा है। कन्वर्ट द मोल्स ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम इनटू मोल्स। मास इज इक्वल टू मोल टाइम्स मोलर मास। मास कितना है? 0.345 मोल्स ऑफ सोडियम निकालें। मोलर मास कितना है सर सोडियम का? 32। N = 0.345 डिवाइडेड बाय 23। क्या आ रहे हैं मोल्स ऑफ सोडियम? बताओ जी। 0.015 ग्राम्स। आर यू श्योर? बस यही है, मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ, आई एम ट्रस्टिंग यू विद दिस। 0.015 ग्राम्स आ गए सर। डिड्यूस द मोल्स ऑफ NaOH, वही बात है, स्टिच करो सर। 2 मोल्स ऑफ सोडियम गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ NaOH। सो 2 मोल्स, अगर 2 मोल्स देते हैं, जाहिर सी बात है, 2 मोल्स अगर 2 मोल्स देते हैं, ये ग्राम क्यों लिखा हुआ है मैंने? मोल है यार ये। 2 मोल्स अगर 2 मोल्स देते हैं, तो आपके पास 0.015 कितने मोल्स देगा? जाहिर सी बात है 0.015 ही देगा ना यार। दो, अगर दो दे रहे हैं तो 0.015 मोल्स ही देगा। अब कह रहे कॉन्सेंट्रेशन निकालो। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आपने निकाले हैं, स्टिचिंग ही की है ना, सोडियम से आप गए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। Now once you have the moles of sodium hydroxide, मांगा क्या हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन N = CV। मोल्स आपके पास हैं 0.015। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। वॉल्यूम कितना है? सोल्यूशन का वॉल्यूम है 50 cm³। तो CM³ को DM³ में कन्वर्ट करें, 50 डिवाइडेड बाई 1000। कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई है? 0.015 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइड बाई 1000 क्या आता है?
ये आ रहा है मेरे पास 0.05। कॉन्ग कितनी आ गई है बताएं जी? 0.015 डिवाइड बाई 0.05, बताएं जी, आ रहा है मेरे पास 0.3। 0.3 मोल पर डीएम क्यूब, ऐसे ही है। अब ये 0.3 मोल पर डीएम क्यूब आ रहा है, और वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको कह रहा है कि सर मुझे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दो। ग्राम पर डेसीमीटर, इस मोल को मैस में कन्वर्ट करना है ना, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मोल को मैस में? मैस इक्वल मोल टाइम्स मोलर मैस। मैस में कन्वर्ट करना है, मोल्स आपके पास हैं 0.3। मोलर मैस कितने, वो क्या भी रह के कैलकुलेट करो। सोडियम क्या है? 32। सोडियम है 32, ऑक्सीजन है 16, और ये एक। कैलकुलेटेड क्या आ रहा है बताओ? हो गया। और ये हमने जेन्युइन बात बताऊं, ऊपर यही किया हमने, लेकिन चूंकि सवाल नया हो गया, ओ माय गॉड न्यू क्वेश्चन, तो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा यकीन करें, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा यकीन करें, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बेंजीन भी दे दूं ना सवाल में, और यही 3 स्टेप्स करने हैं, बेंजीन की रिएक्शंस लिखवा दूं, जो मर्जी कर दूं, यही 3 स्टेप्स करने हैं। 12 आ रहा है। खुश हो गए हो आप कि मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 12 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, खत्म। खुश। अब जाएं दूसरे दूसरे टॉपिक पे चले जाएं, तो स्टोइकियोमेट्री खत्म हो गई। अब स्टोइकियोमेट्री का एक सब पार्ट है लिमिटिंग एंड एक्सेस। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। यार ये तो 8 बजने जा रहे हैं, जल्दी खत्म करने हैं यार, शाबाश। लिमिटिंग एंड एक्सेस स्टोइकियोमेट्री का ये छोटा बच्चा है सर। CH4, बल्कि CH4 को छोड़ दो, HCl sodium reacts with hydrochloric acid to give you sodium chloride plus hydrogen gas। दो दो बल्कि नहीं यार, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जो मजे की हो। सोडियम रिएक्ट्स विद phosphoric acid to give you sodium phosphate प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये सर जनाबे वाला आपके पास आ जाएगा 3। और ये मैं बैलेंस आपको करके दे रहा हूँ, बैलेंसिंग आपका वो नहीं है। 3 तो 2 हो, किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 3। मैं बैलेंस करके दे रहा हूँ आपको। देखिएगा बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन, यस। सर इज दैट चाय? नहीं, पानी पी रहा हूँ यार। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर यू है। अब सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, लिमिटिंग एंड एक्सेस की क्या कहानी है। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट क्या है? देखिए अंग्रेजी के 2 लफ्ज हैं, लिमिटिंग एंड एक्सेस। रिएक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट व्हिच फिनिशेस after the reaction is over, and excess reactant is the reactant which remains after the reactant is over, है यही होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जो आपके पेपर में पूछते हैं? लिमिटिंग reactant which finishes after reaction is over, and excess reactant which after remains after reaction is over, डन सर। अब ये क्या कहानी है, ये क्या लिमिटिंग क्या एक्सेस? देखिए मैं हमेशा कहता हूं, if I say that to make one house you need three bories of cement, just assuming assumption ले रहे हैं, 2 सीमेंट की बोरियां चाहिए to make one house, plus you need 10 bricks, right? 2 सीमेंट की बोरियां and 10 bricks is gonna give you one house. This is what I am telling you. मुझे बताएं, अगर 4 सीमेंट के बैग्स हो जाएं और 20 ब्रिक्स हो जाएं, कितने घर बनेंगे? 4 सीमेंट की बोरियां और 20 ब्रिक्स हो जाएं, कितने घर बनेंगे? 2 हाउसेस। अच्छा, अगर 6 सीमेंट की बोरियां हो जाएं और 30 ब्रिक्स हो जाएं, कितने घर बनेंगे? 3 हाउसेस। अगर 8 सीमेंट की बोरियां हो गई हैं और 40 ब्रिक्स हो गए हैं, कितने घर बनेंगे? 4। ओए 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 ओए, क्या हो गया क्या हो गया? 8 क्यों बनेंगे? 2 से और 1 से 10 से 1 बनता है, तो ये डबल हो, 2 घर, ये डबल हो, क्या हो गया अभी क्या? तो 4 घर बनेंगे। अच्छा अब देखिएगा, अब सुनिएगा, अब आपके पास 9 सीमेंट बैग्स हो गए टोटल, और आपके पास 50 ब्रिक्स हो गए हैं। तो उसूलन मैं क्या कहूँ, 50 ब्रिक्स है, ब्रिक्स 10 और हो गए हैं, तो मैं कहूँ 5 घर बनेंगे। 5 घर बनेंगे? बिल्कुल नहीं, 4 ही घर हैं, घर 4 ही हैं, 4.5 को छोड़ दो, 4 ही घर बनेंगे। क्यों 4 घर बनेंगे? क्योंकि पांचवा घर मैं बना ही नहीं सकता।
पांचवा घर तो मैं बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? एक सीमेंट की बोरी कम है। अब मुझे आप एक बात है, तो आपने कहा सर टोटल चार घर ही है, देयर इज नो सच थिंग एज 0.5 घर, चार घर। तो टोटल तो सर आपके पास चार घर ही हैं, ज्यादा तो आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमने घर आगे बेचने हैं, किसी को आधा घर तो आप नहीं दे सकते ना, तो टोटल चार घर ही बनेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों? Why are in totality only four houses? Why are four houses only going to form? Because the cement bags are limiting. By how much are they limiting? By one cement bag. एक और cement bag आ जा तो घर बन जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट इज योर हाउस। द प्रोडक्ट इज योर हाउस। डिड यू कैलकुलेट द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट और द एक्सेस रिएक्टेंट? एक्सेस रिएक्टेंट को अगर आप देखते तो आप कहते हो 50 ब्रिक्स हो गए तो पांच घर बनने चाहिए, तो आप तो कह रहे हो चार बन रहे हैं। तो यू आर सेइंग ओनली फाइव, फोर हाउसेज आर मेड, लेकिन ये तो एक्सेस तो 50। तो यू रियलाइज दैट द प्रोडक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय व्हाट? द प्रोडक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो टीचर्स रट्टा लगवाते हैं बच्चों को कि प्रोडक्ट जब भी हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से कैलकुलेट होते हैं। बड़ा बताओ क्यों? ये वो खत्म हो जाता है ना। क्यों? देखो, आप खुद देखो, लॉजिकली स्पीकिंग चार घर ही बन पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज द सीमेंट बैग्स आर लिमिटिंग। और आपने चार क्यों कहा, पांच क्यों नहीं कहा? ब्रिक्स तो 50 हो गए, क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा क्योंकि द प्रोडक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द लिमिटिंग रिएक्टेंट। खत्म। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और सेकंड स्टेप क्या होता है? यूज द लिमिटिंग रिएक्टेंट टू फाइंड द प्रोडक्ट। जो ये यूज द लिमिटिंग रिएक्टेंट टू फाइंड द प्रोडक्ट है, ये ऊपर जो आपने स्टोइकियोमेट्री की है वही है। स्टोइकियोमेट्री जो आपने ऊपर स्टोइकियोमेट्री की है वही है, कन्वर्ट द डेटा इनटू मोल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सर व्हाई कैंट वी से 10 ब्रिक्स आर इन एक्सेस? कह दो 10 ब्रिक्स आर इन एक्सेस, कह दो। मैंने कब कहा कि नहीं? मैंने तो सिर्फ कहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट सीमेंट है ना। कह दो, किसने मना किया? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट? उसके लिए मैं एक एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा और लिमिटिंग इन एक्सेस खत्म हो गया। हर टाइप का सवाल करा रहा हूं, इसके बाद आपका मोल का हर सवाल होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैं टाइप ऑफ सवाल करा सकता हूँ, हर सवाल तो नहीं करा सकता ना। अब सवाल तो आपने खुद करना है, लॉजिक यही है, जैसे स्टोइकियोमेट्री में मैंने 10 सवाल आपको उसी लॉजिक से कराए। अच्छा, अब देखिए मैं कहता हूँ 30 ग्राम्स ऑफ सोडियम, या बल्कि 30 की जगह कर दें 23, 20, 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम reacts with reacts with um, 20 centimeter cube of 2 mole per decimeter cube of phosphoric acid. Calculate the volume of hydrogen gas formed. मैं दो सवाल कराऊंगा, वो पूरी आपकी एक्सेस लिमिटिंग रिएक्टेंट की कहानी होगी। अब देखिए सर, हाउ डू वी नो दैट इट्स अ लिमिटिंग इन एक्सेस क्वेश्चन? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ डू वी नो इट्स अ लिमिटिंग इन एक्सेस क्वेश्चन? क्यों? हमें कैसे पता? कि हमने तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करे, लेकिन डेटा क्या गिवन है? डेटा आपको सोडियम का भी गिवन है और H3PO4 का भी गिवन है। इससे भी मोल्स निकाल सकते हो, उससे भी मोल्स निकाल सकते हो। अब सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में से किसको इस्तेमाल करूं? तो सर दैट इज हाउ यू नो इट्स अ लिमिटिंग इन एक्सेस क्वेश्चन, बिकॉज बोथ रिएक्टेंट्स डेटा वुड हैव बीन गिवन टू यू। दोनों रिएक्टेंट का डेटा पता है आपके पास प्रैक्टिकली। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में वो मनहूस क्या कर रहे हैं? ही इज टेकिंग 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड ही इज रिएक्टिंग इट विद दिस मच फास्फोरिक एसिड। दोनों से मैं मोल्स निकाल सकता हूं। तो पहला स्टेप, हाउ डू यू कैलकुलेट which one is the limiting reactant and which one is the excess reactant? पहला स्टेप है कन्वर्ट इनटू मोल्स। दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करें। दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करें। सर करें दोनों को मोल्स में कन्वर्ट? हाँ जी, शाबाश। दोनों को मोल्स में कन्वर्ट करें। 46 ग्राम सोडियम को मैं कर रहा हूँ, और आप लोग भी इसको भी करें, सोडियम को और मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। शाबाश, निकालें, शाबाश। सोडियम के मोल्स, मास गिवन है, मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। मास 46 है, मोल्स निकालें सर। मोलर मास कितना है सोडियम का? 32। एन इज इक्वल टू 46 डिवाइड बाय 32, क्या आ रहा है? 2। 2 मोल्स ऑफ सोडियम है मेरे पास। सर फॉस्फोरिक एसिड के मोल्स निकालें, इधर चुपके चुपके, इधर कैसे निकालेंगे? इट्स गिवन, यूर गिवन द वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, सोल्यूशन है, एंड कॉन्सेंट्रेशन। एन इज इक्वल टू सी वी। मोल्स निकालें, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2। वॉल्यूम कितना है सर? 20, लेकिन 20 cm³ में, डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इंटू डेसीमीटर क्यूब। 20 इंटू टू डिवाइड बाय 20 इंटू 2 डिवाइड बाय 1000, क्या आ रहा है? 0.04 मोल्स ऑफ H3PO4। अब सर
मुझे जो दोनों डेटा गिवन थे, मैंने दोनों डेटा को मोल्स में पहले कन्वर्ट किया। क्यों कर रहा हूं? टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसके बाद इससे मुझे तो कुछ नहीं पता लग रहा है, इससे तो कुछ नहीं पता, इससे सिर्फ क्या पता लग रहा है कि यू हैव 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द लेबोरेटरी, और वो जो जो स्टूडेंट है या जो टीचर है वो उसको रिएक्ट करवा रहा है इतने मोल से। ये है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये आपके पास अवेलेबल है। ये जो कह रहे हैं ना, दिस इज रिएक्टेड विद दिस, तो ये कह रहे हैं कि अवेलेबल ये दो चीजें, और इतना मैंने इसके साथ इतने के साथ रिएक्ट किया, तो मैंने इन दोनों को मोल्स में कन्वर्ट किया। द सेकंड स्टेप इज यूज द इक्वेशन। लेकिन यूज द इक्वेशन टू कंपेयर दीज टू। हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे? यूज द इक्वेशन टू कंपेयर द टू। इन दोनों को कंपेयर कर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्तेमाल निकालें, कंपेयर द टू। पहले जरा सुनते जाएं तो समझ आ जाएगी, थोड़ा सा सुन लें, सबर कर लें, सबर करें। यूज द इक्वेशन टू कंपेयर द टू, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सर, आपने सोडियम निकाला और आपने H3PO4 निकाला, अब इसी सोडियम और H3PO4 को इक्वेशन की थ्रू जरा कंपेयर करें। क्या मतलब? सर यू नो that for 6 moles of sodium they react with 2 moles of phosphoric acid. So 6 moles of sodium reacts with 2 moles of phosphoric acid. अब इन दोनों में से कोई भी ले लें, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी कौन सा ले लूं? सोडियम का ले लूं कि मोल्स ले लूं कि फास्फोरिक एसिड? दोनों की आपकी मर्जी है, कौन सा ले लूं? सोडियम की ले लूं मोल्स के फास्फोरिक एसिड? चलो जी सोडियम के ले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन मुझे बता रहा है कि 6 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो 2 मोल ऑफ सोडियम कितने फास्फोरिक एसिड के मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? 2 मोल ऑफ सोडियम कितने फास्फोरिक एसिड के मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? हाँ जी बताएं। 2 × 2 4, 4/6, व्हाट यू गेट? 4/6 कितने आ रहे हैं मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड? 0.67। तो इतने मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। these many moles of phosphoric acid are required for you। अवेलेबल कितने हैं लैब में? ये देखिए, ये दो चीजें जो लैब में अवेलेबल है। आपने कहा यार 6 मोल के लिए दो चाहिए, 2 मोल्स ऑफ सोडियम के लिए कितने मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड चाहिए? इतने मोल्स आर रिक्वायर्ड। अवेलेबल कितने हैं? रिक्वायर्ड 0.67 थे, अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल 0.04 है। अवेलेबल कम है कि ज्यादा है? रिक्वायर्ड इतने थे और अवेलेबल in your laboratory is 0.04, so you realize that phosphoric acid is the limiting reactant। खत्म। तो फॉस्फोरिक एसिड हमें पता लग गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ बताना है कि यार फॉस्फोरिक एसिड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि अवेलेबल इज 0.04 बट रिक्वायर्ड इज 0.67। हाँ, कितने से कितना और चाहिए था, फिर आपका आंसर सही होता। कितना और चाहिए? 0.626 और चाहिए। लेकिन इससे मुझे पता लगे कि फॉस्फोरिक एसिड इज लिमिटिंग। अब पता लग गया कि फॉस्फोरिक एसिड इज लिमिटिंग, पता लग गया मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कितने हैं, ये आपने इधर कैलकुलेट किए हैं। मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आपने कैलकुलेट किए, एक दफा पता लग गया ना कि कौन सा लिमिटिंग है, बस अब फॉस्फोरिक एसिड से कैलकुलेशन करें। मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आ गए हैं, आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट आइडेंटिफाई क्यों करना था? इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करते हैं? लिमिटिंग के। तो सबसे पहले मैंने लिमिटिंग एंड एक्सेस का सवाल क्या किया? दोनों को मोल्स में कन्वर्ट किया, कंपेयर किया टू फाइंड विच वन इज लिमिटिंग, मिल गया। अब सिंपल स्टोइकियोमेट्री जो आप ऊपर करते आ रहे हैं वही है। मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आ गए, इक्वेशन इस्तेमाल करें। फॉस्फोरिक एसिड मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। तो यू नो दैट 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड गिव्स यू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 0.04 होंगे, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे? एन क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू गेट, एन इज इक्वल टू 0.04 टाइम्स इट बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या आ रहे हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? हाँ जी, क्या आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। लॉजिकली जब चीज़ों को समझते हैं ऐसी ही है, आसान ही है, कुछ भी नहीं है। 0.06 आ रहे हैं मोल्स ऑफ H2। लेकिन मुझे मोल्स नहीं चाहिए H2 की, मुझे वॉल्यूम चाहिए। V इज इक्वल टू एन टाइम्स 24। वॉल्यूम चाहिए 0.06 टाइम्स इट बाई 24 DM³ में लेट्स सपोज मांगे। अगर CM³ तो फिर 24,000 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है? 0.06 मल्टीप्लाई बाई 24, 1.44। मजे की बात है, इतना बड़ा सवाल सिर्फ ओ लेवल्स में आ सकता है। IGCSE में इतना बड़ा सवाल वो कभी नहीं देता। IGCSE में सवाल किधर तक आता है? इधर तक। वो कहता है आइडेंटिफाई करो कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है, और ये 3 से 4 मार्क का सवाल आता है। और ओ लेवल में करते हैं, सारे करते हैं सवाल, इसके सारे करेंगे। ओ लेवल्स में क्या आता है? ओ लेवल्स में भी इतना बड़ा सवाल नहीं। अगर ये आया तो ये 5 से 6 नंबर का सवाल आएगा, कभी नहीं आया पूरा का पूरा सवाल। सिर्फ आपको कहता है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग इन एक्सेस, इन दोनों के बीच में बस ये कन्वर्ट बोथ द डेटा इनटू मोल्स।
यूज द इक्वेशन टू फाइंड विच वन इज लिमिटिंग इन एक्सेस बाय कंपेयरिंग द टू। एक दफा आ गया आपके पास, फिर तो सिंपल स्टोइकियोमेट्री के सवाल बन गए ना। स्टोइकियोमेट्री क्या है? इतने मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड रिएक्ट कर जाता है, मुझे बताओ कितना हाइड्रोजन बन गया। स्टोइकियोमेट्री, कन्वर्ट द डीएनए इनटू मोल्स, वो पहले से आपने किया हुआ है। यूज द इक्वेशन टू फाइंड मोल्स ऑफ अननोन, कन्वर्ट इट इनटू व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स। आ जाए, लिमिटिंग एक्सेस के सारे सवाल कर रहा हूं आपको। आ जाए, आ जाए, एक एक सवाल का मैं हशर नशर कर देता हूं। बताएं जी, आ जाओ। ओरे साजना, मैं तेज जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, लेकिन मैं तेज जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैंने सारा दे दिया। अब देखो, लिमिटिंग एंड एक्सेस, पहला सवाल। जिंक क्लोराइड ब्ला 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 3.5 ग्राम्स ऑफ जिंक ऑक्साइड इज एडेड टू दिस मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे सर आपको पता लिमिटिंग एंड एक्सेस का सवाल है? कैसे पता लिमिटिंग एंड एक्सेस का सवाल है? क्योंकि दोनों के डेटा गिवन है, दोनों रिएक्टेंट्स के डेटा गिवन है। सर पहला स्टेप, कन्वर्ट बोथ द रिएक्टेंट्स इनटू मोल्स। 3.5 ग्राम्स ऑफ जिंक है, मैस में मोल्स में कन्वर्ट करें, मैस इक्वल मोल टाइम्स मोलर मैस। मैस कितना है? 3.5। मोल्स निकालें, मोलर मैस ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक कितना है? 65 है, 64 है? 65 है, 64, आई थिंक इट्स 65, देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। जिंक है, 65 है, प्लस 16 इज ऑक्सीजन। सर बताएं कितने मोल्स आ रहे हैं जिंक ऑक्साइड में? इधर करूं, जिंक ऑक्साइड के मोल्स, मोल्स कितने आ रहे हैं? 3.5 डिवाइड बाई 65 प्लस 16, 70, 76, 81 मोल्स इज इक्वल टू कितने आ रहे हैं? 0.04। 0.04, ये किस चीज़ के मोल्स आ गए हैं? जिंक ऑक्साइड के। दूसरा स्टेप, इसी को कन्वर्ट करो, पहला स्टेप में ही है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स भी निकालो। से पहला क्या स्टेप है? मोल्स ऑफ जिंक, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स निकालो, शाबाश। बताओ जी, एन इज इक्वल टू सी वी। मोल्स निकालें जनाब वाला। सी कितना है? 1.2। वी कितना है? 50 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि सी एम क्यूब में है। बताएं जी क्या आ रहा है? 0.0432। नहीं नहीं, पूरा बताए, पूरा बताए, ये 0.0432 है? प्लीज पूरा बताएं। चलो, और इधर बताएं, नीचे वाला बताएं, 0.06। खत्म। ये इसके मोल्स आ गए, दोनों के मोल्स आ गए। अब यूज द इक्वेशन टू कंपेयर द टू फाइंड द लिमिटिंग एंड एक्सेस। तो जिंक ऑक्साइड और HCl को अब कंपेयर करें। सर आपको पता है इक्वेशन को देखिए, 1 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl। इन दोनों में से कौन सा लूं? आपकी मर्जी है, जो मर्जी लेना है। आप दोनों की मर्जी, कौन सा लेना चाहते हैं? ये वाला ले लूं, जिंक ऑक्साइड ले लूं, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूं? मर्जी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लूं, ले लें। सर 0.06 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए कितना जिंक चाहिए था? कितना जिंक चाहिए था बताएं जी। इन दोनों में से एक लेना है, इन दोनों में से एक लेना है। कितना जिंक चाहिए था? 0.06 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है? 0.03। सर 0.03 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड वर रिक्वायर्ड। दिस इज व्हाट यू कैलकुलेटेड, दिस वाज रिक्वायर्ड। अवेलेबल कितना है? दिस इज व्हाट इज अवेलेबल, ये लैब में अवेलेबल है। रिक्वायर्ड 0.03 है, अवेलेबल 0.404 है। रिक्वायर्ड 0.03 है, रिक्वायर्ड कितना था? 0.03। अवेलेबल कितना है? 0.04। तो अवेलेबल ज्यादा है, रिक्वायर्ड कम है, तो आपने कहना है देयर फोर अवेलेबल इज 0.0432, बट रिक्वायर्ड इज ओनली 0.03। सो बाय हाउ मच इज इट इन एक्सेस? बस इधर तक सवाल कर लो, खत्म, पूरा मार्क। देयर फॉर जिंक ऑक्साइड इज इन एक्सेस है। इधर तक करो 3/3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यार बाय हाउ मच इज इट इन एक्सेस, तो बाय हाउ मच कितने में एक्सेस है? 0.0432 अवेलेबल है, और इतना चाहिए था, तो कितने से एक्सेस में था? 0.0132। तो अगर ये होता, फिर 4 मार्क का सवाल होता कि बाय हाउ मच इज इट इन एक्सेस। तो सर ये है आपके पास इतने से इतने मोल से एक्सेस में। सर अदर वे राउंड कर कर भी दिखा दें यार, ये ले लो, अदर वे राउंड भी करके वो कह रहे दिखा दें, ये लो। जिंक ऑक्साइड HCl 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल, तो वो दूसरा अदर वे राउंड। अब जिंक ऑक्साइड इस्तेमाल कर लें अगर करना है, तो जीरो। इधर तक सवाल खत्म है, ये बच्चा कह रहे हैं अदर वे राउंड कर ले, अगर हम जिंक ऑक्साइड को इस्तेमाल करते तो कर लें। 0.0432 के लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए थे? बताओ जी, कैलकुलेट करो। 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये अल्टरनेटिवली कह रहा हूँ, हैं? या ये कर लो, और या ये कर लो, आइदर दिस और दिस। हाँ जी, बताओ जी कितने मोल्स आ रहे हैं? हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl वर रिक्वायर्ड? 0.086 मोल्स ऑफ HCl आर रिक्वायर्ड। अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल कितने हैं जनाब? अवेलेबल कितने हैं? 0.06। रिक्वायर्ड 0.086 हैं, अवेलेबल कम है। अवेलेबल HCl के कम है, रिक्वायर्ड ज्यादा है। देयर फॉर जिंक ऑक्साइड इज इन एक्सेस, बिकॉज बिकॉज क्यों, क्यों एक्सेस में, क्यों एक्सेस में? बिकॉज फॉर 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 0.0432 moles you needed, required HCl were 0.086।
बट अवेलेबल आर 0.06। ठीक है, खत्म। तो देयरफॉर HCl इज लिमिटिंग एंड जिंक ऑक्साइड इज इन एक्सेस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों में से। अच्छा वैसे एक टिप दे दूं, टिप ये है कि जो एक्सेस में होता है ना, जो एक्सेस में है तो उसके अलावा जो एक्सेस में होता है उसको एन कंसिडर कर लिया करें, और बाकी वो आपको बता देता है कि ये एक्सेस में शो करो। तो जो एक्सेस में होता है उसको एन कर दिया करें, ऐसे ज़्यादा अच्छा आंसर लगता है बजाय ये। लेकिन एग्जामिनर ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। अच्छा सर, इन IGCSE दी ओनली आस्क विच इज लिमिटिंग एंड विच इन एक्सेस। यार अगर ये रट्टे मारने हैं ना आपने, तो मुझे बता दो, मैं आपको रट्टा मारना सिखा दूंगा, कसम से मैं रट्टे मारना सिखा दूंगा। सर ECF होता है, लेकिन आपकी गलती क्यों होगी? क्यों कर रहे हैं गलती? नहीं करें। कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, देखो लॉजिकली समझो, वही चीज है। अब दो दो दफा, तीन दिन में, 10 दफा मैं तो नहीं करा सकता। ये ग्राम्स है, इसको भी मोल में कन्वर्ट करो, इसको भी मोल में कन्वर्ट करो, दोनों को कंपेयर करो, आ गया जवाब। करूं कि नहीं कर सकते हो? ये वही चीज है, ये ग्राम्स है, ये वही वही चीज बार बार, ये हर साल यही है, ये देखो हर साल यही है। लेकिन असल में टीचर सेग्रीगेट करके पढ़ाते नहीं है ना, वो तो बस सब कुछ जंबल अप कर देते हैं, यही है। कर लेंगे, कर लेंगे, कर लोगे। ये देखो मैथ्स गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट सुनिए। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि एक लिमिटिंग इन एक्सेस का छोटा सा पॉइंट है, फिर ये भी खत्म। उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, परसेंटेज यील्ड, और एम्पेरिकल मोलेकुलर फार्मूला, और दो तीन हाइड्रेटेड सॉल्ट, टाइट्रेशन, और खत्म। Sir, not like that. What should I practice as an ICGSE student? You should practice my topical booklet. You should practice questions. वो जिधर मर्जी से हो टॉपिकल क्वेश्चंस कर लो, IGCSE के कर लो, ओ लेवल्स के कर लो, दोनों करने हैं। ये क्या बात हुई कि अगर मैं IGCSE का हूं तो सिर्फ IGCSE का करूंगा, ओ लेवल का स्टूडेंट हूं तो ओ लेवल का नहीं। आप टॉपिकल्स और ईयरली के दो इसलिए करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाए। इसलिए नहीं करते कि आप सवालों पे रट्टे मार लें, प्लीज। मैं इसलिए अपने पास पेपर सेशन में दोनों के पेपर्स कराता हूँ, और एक साथ कराता हूँ, और दोनों को हर बच्चे को कराता हूँ। और IGCSE वाली फिर ओ लेवल के पेपर में रो रहे होते हैं, और ओ लेवल वाले IGCSE की MCQs में रो रहे होते हैं। तो कम ऑन यार, दोनों करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, लिमिटिंग इन एक्सेस फॉर गैसेस। सर अगर गैसेस हो तो क्या कहानी है? याद रखिए, if I say CH4 is a gas, reacts with O2 which is also a gas, gives you carbon dioxide and H2O। सर आल्टो ओसा करेगा, गए कर गए सर, आल्टो ओसा कर गए। नहीं नहीं, ओसा नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यार रट्टे ना मारो। अच्छा चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, टाइम कम है। अच्छा इफ आई बैलेंस दिस आउट, ये दो आ गए, चार होंगे, ये दो चार दो, ये बैलेंस इक्वेशन। अब जरा करें, मैं कह रहा हूँ आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 reacts with 50 centimeter cube of O2, calculate volume of carbon dioxide, calculate volume of carbon dioxide after the reaction। चलो जी करो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर। पार्ट टू मैं इधर लिखूंगा, पार्ट वन करें, शाबाश। पहला स्टेप, CM क्यूब, CM क्यूब, दोनों CM क्यूब है। सर CM क्यूब की जगह कोई और यूनिट तो नहीं आएंगे? डेसीमीटर क्यूब भी तो दे सकता है ना यार, लीटर भी दे सकता है, लेकिन नहीं देगा। CM क्यूब और DM क्यूब देगा। यार क्यों रट्टे मार रहे हो? मुझे ये चीज, बस इस चीज से नफरत है यार। आपको टीचर्स ने इतना डीमोटिवेट किया होता है ना। बच्चों के सवाल भी है, बस ये होगा, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं, इसके अलावा तो और कोई। रट्टे नाम और कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह सब कुछ आएगा आपको। ताकि यूनिट कन्वर्जन याद कर लूं, नहीं कोई याद करने की जरूरत, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन आनी चाहिए बस। सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम सॉरी, बट अब क्या करें, 9 बजे तक मैं जा रहा हूँ, आज तरावियां मैं स्किप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अनम किडो, मैंने ऊपर इसके बहुत सवाल करा लिए, वो आप देख लो प्लीज, रटे ना मारे। सर शाबाश करें जी। चलो चलो चलो, शाबाश। मैं रात को कर लूंगा, कोई नहीं। MCQ की बुकलेट नहीं है, करें करें, शाबाश शाबाश। कैसे करते? फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट बोथ द डेटा इनटू मोल्स, फाइंड विच वन इज लिमिटिंग एंड विच वन इज इन एक्सेस। और लिमिटिंग रिएक्टेंट से, बस लिमिटिंग मिल गया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करें। शाबाश। हाँ जी बिल्कुल, अभी यहाँ 24,000 लेंगे क्योंकि CM क्यूब में है ना।
V इज इक्वल टू एन टाइम्स 24,000, बिल्कुल। करिए शाबाश, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मलिक सवाल करो सवाल, तरावियों को छोड़ दो, मेरी तरावियां अल्लाह जाने, चलो शाबाश। जल्दी करो यार, मुझे 6 और सब टॉपिक्स पढ़ाने हैं इसमें। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, परसेंटेज यील्ड, एम्पेरिकल मोलेकुलर फॉर्मूला, टाइट्रेशन, और क्या है, टाइट्रेशन, एम्पेरिकल मोलेकुलर फॉर्मूला है, एक चीज है हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाँ जी, कर लिया, खत्म। अब देखिए, कुछ डम्बोज ने क्या किया होगा, कुछ डम्बोज ने किया होगा, पहले दोनों के डेटा को मोल में कन्वर्ट किया, फिर दोनों को कंपेयर किया, कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है। जो लिमिटिंग आया उसको फिर आपने इस्तेमाल किया टू फाइंड द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपने इस्तेमाल किया, V इज इक्वल टू एन टाइम्स 24,000, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मुझे CM³ में लेट सपोज चाहिए। तो आपने ये सारा कंपैरिजन कंपैरिजन कर लिया है। तो जो सब बच्चों ने किया बिल्कुल ठीक किया। लेकिन आपका 50 मिनट तो अब इस पे नहीं लगाने। याद रखिएगा, जब लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट फॉर गैसेस होते हैं, गैसेस के लिए याद रखिए जो ये मोलर कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, ये 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल्स टू गिव यू 1 मोल्स, ये वॉल्यूम के कोएफिशिएंट्स भी होते हैं। 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल्स टू गिव यू 1 मोल, यू कैन ऑल्सो से 1 CM³, ये सिर्फ गैसेस के लिए रिएक्ट्स विद 2 CM³ टू गिव यू 1 CM³। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब रिएक्ट्स विद 2 डेसीमीटर क्यूब टू गिव यू 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट हियर। जो मोलर कोएफिशिएंट्स होते हैं, याद रखिए, जो मोल्स के कोएफिशिएंट है फॉर गैसेस, वो वॉल्यूम के कोएफिशिएंट्स भी होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्यों मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। क्यों आपको नहीं जानने की जरूरत है, क्लासेस अगर जानना है क्लासेस देख ले, ठीक है। बट फॉर नाउ जिस नो मैंने कॉन्सेप्ट्स कराने हैं, मुझे आपको सवाल कराना सिखाना है, चलो। तो फॉर नाउ जिस नो कि 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल्स टू गिव यू 1 मोल, चूंकि ये गैसेस है तो मैं इसकी जगह, ये मोल मोल की जगह मैं कह सकता हूँ 1 CM³ रिएक्ट्स विद 2 CM³ टू गिव यू 1 CM³। या मैं ये भी कह सकता हूँ CM³ की जगह 1 DM³ रिएक्ट्स विद 2 DM³ टू गिव यू 1 DM³, राइट। अब बेसिक मैथ है, बिल्कुल। देखिए, असल में 1 मोल में 24 सेंटीमीटर 24 DM³ होते हैं, 2 में 48 होते हैं, 3 में 24 होते हैं। तो इन सबको 24 से डिवाइड करें, 1 2 1 आ रहा है। 24,000 कर ले, 48,000 कर ले, 24,000 कर ले, सबको डिवाइड करें 24,000 से, तो वही 1 2 1 ही आएगा। अच्छा, अब इस ये करने का मकसद क्या है, इसमें करने का मकसद ये था कि सिंपल सिंपल डायरेक्ट कहानी हम करें। हम कहें अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर ढूंढना है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट्स विद 2 सेंटीमीटर क्यूब। डायरेक्ट इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। 1 CM³ मस्ट रिएक्ट विद 2 CM³। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 2 सेंटीमीटर क्यूब के साथ रिएक्ट करे तो 10 कितने के साथ करेगा, 10 CM³ कितने के साथ रिएक्ट करेगा, एक्स यू डोंट नो, 10 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 20 CM³ के साथ। लेकिन अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल 50 हैं। रिएक्ट 20 के साथ करेगा, अवेलेबल 50 है। सो ऑक्सीजन इज इन एक्सेस एंड मेथिन इज लिमिटिंग। तो मेथिन चूंकि लिमिटिंग, पता लग गया आपको कि मेथिन लिमिटिंग है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म, फाइंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये MCQs में आता है। तो इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों, 1 CM³ अगर दो के साथ रिएक्ट करते तो 10 20, अगर एक दो के साथ करते तो 10 20 के साथ करेगा, एक दो के साथ करते तो 10 20 के साथ करेगा। ये तो 50 अवेलेबल है, तो 20 के साथ करेगा, 30 रह जाएंगे। तो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टर। अब अगर एक मेथेन, 1 CM³ ऑफ मेथेन आपको 1 CM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, 1 CM³ ऑफ मेथेन अगर 1 CM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो 10 कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हाँ जी बोलो। 10 कितना देगा, एक अगर एक दे रहा है तो 10 कितना देगा, 10। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 10 CM³। मेरा सेकंड पार्ट का सवाल कहता था, व्हाट इज द टोटल गैस आफ्टर द रिएक्शन, टोटल गैस लेफ्ट इन द चेंबर आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद टोटल गैस कितना रह गया। ये MCQ में बारहा टेस्ट हुआ है, हर दफा बच्चे गलत करते हैं। टोटल गैस कितना रह गया, सर मैं कहूंगा सर टोटल गैस कितना रह गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड के बने, और नहीं 110 किधर से आ गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड के बने, और 20 ऑक्सीजन रिएक्ट हो गए, पीछे 30 रह गए हैं। तो 30 + 10, 30 + 10, 40, 40 CM³ इज लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए जी, अगर 10 CM³ ऑफ मेथेन है, एक दो के साथ करते हैं, 10 20 के साथ करेगा, 50 - 20, 30 रह गए हैं। 30 CM³ ऑफ ऑक्सीजन रह गए हैं, और 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रह गए। तो टोटल गैस आफ्टर द रिएक्शन 10 + 30, 40। ये इतना टाइम जो आपने लगाया, आई डिडंट, ये 25 किधर से आ रहा है, 25 जरा मुझे कोई बताइए, 25 25 जो बच्चे लिख रहे हैं, 25 कैसे आ रहा है, 25 कैसे आ रहा है।
इट्स क्वाइट इजी आतिफ, आई नो इट्स क्वाइट इजी। शामीन अगर 10 एक दो के साथ कर रहा है, 1 cm³ दो के साथ करेगा, तो 10 20 के साथ करेगा, 10 20 के साथ करेगा। तो ऑक्सीजन एक्सेस में अवेलेबल 50 है और करेगा 20 के साथ रिएक्ट, तो पीछे कितने रह गए? हाउ मच ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिहाइंड? 50 cm³ वॉज अवेलेबल एंड 20, 10 रिएक्टेड विद 20, तो ये 10 भी खत्म हो गया, 20 भी खत्म हो गया, लेकिन इसमें से 30 रह गया। ये 30 रह गया और ये 10 बन गया, तो 30 + 10 इज 40। CH4 लिमिटिंग कैसे हुआ? रिकॉर्डिंग देख लेना एक दफा प्लीज। आगे बढ़े। लिमिटिंग ऐसी हुआ कि अगर अगर 1 cm³ दो के साथ रिएक्ट करता है, तो 10 cm³ कितने के साथ करेगा? 20। 10 cm³ वुड रिएक्ट विद 20 के डो खदीजा, आर यू लिसनिंग? 10 वुड रिएक्ट विद 20, मैंने कैलकुलेट किया। वन अगर टू के साथ करता है, 10x के साथ करेगा, क्रॉस मल्टीप्लायर x इज इक्वल टू 20। अवेलेबल कितने हैं? 50। रिएक्ट कितने कर गए? 20। अवेलेबल कितने हैं? 50। रिएक्ट कितने गए? 20। तो रह कितना आ गया? ऑक्सीजन। कितना एक्सेस में था? ऑक्सीजन अवेलेबल 50 था, लेकिन सिर्फ चाहिए कितना था? चाहिए कितना था? 20। तो लिमिटिंग कौन सा हुआ? लिमिटिंग कौन सा हुआ? ऑक्सीजन तो एक्सेस हुआ, तो जाहिर सी बात है CH4 लिमिटिंग हुआ है। और कितना रह गया? कितना बाय हाउ मच इज ऑक्सीजन इन एक्सेस? 50 - 20। 10 cm³ कहाँ से आया? सवाल में दिया हुआ है मैंने। आगे बढ़े तो दिस वाज द गैसेस के लिए लिमिटिंग रिएक्टर। नेक्स्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। ये क्या है? ये वो चीज़ है जो बचपन में आपको टीचर्स ने सिखाया था। परसेंटेज मैं कहूँ आई गॉट 7/15, कितने मार्क्स मिले? क्या परसेंटेज मैंने स्कोर किया? इफ आई से आई हैव गॉटन 7/15, व्हाट इज द परसेंटेज आई हैव स्कोर्ड? अल्लाह खुदा की कसम, ये गलत हुआ ना, मैंने आपके मैथ्स के टीचरों के गले दबा देने हैं। लेस देन 50 नहीं, मुझे मार्क्स बताओ कितना परसेंटेज? व्हाट इज द परसेंटेज आई हैव गॉट? 7/15 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आ रहा है सर? 100%, जाहिर सी बात है। क्या आ रहा है? 7/15 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आया? और परसेंटेज का साइन लगाओ। सर यू साउंड लाइक दैट गाय टीचर इज द अदर वन से नो शी इज अ लाई, आई डोंट नो। अच्छा, 46.7% आ गया है। तो ये 7 क्या चीज़ है? इट्स द मार्क्स दैट यू स्कोर्ड, राइट? इसको हम कहते हैं पार्ट। डिवाइडेड बाय 15 क्या है? होल, पूरा का पूरा। कितने मार्क्स थे टोटल? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास का क्या मतलब है? कि परसेंटेज निकालो किस चीज का? अगर मैं कहूँ आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, इसमें सोडियम की परसेंट, बल्कि सोडियम नहीं, शुरू से मुश्किल बताता हूँ, मुश्किल ही करते हैं बस ना, एक एक एग्जांपल कराऊंगा। अमोनियम सल्फोस्फेट है सर, मुझे बताएं इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास क्या है? व्हाट डू वी मीन परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास? मतलब क्या कि नाइट्रोजन का परसेंटेज इस कंपाउंड में कितना है? तो नाइट्रोजन का क्या क्या मास है? पार्ट। कितने नाइट्रोजन है? 3। सो 14 इज द मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट्स योर पार्ट। इतना नाइट्रोजन है बाय होल, पूरे मास, पूरे कंपाउंड का मास। तो क्या है? 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12। सर ये 12 कैसे आया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस फॉस्फोरस कितना है? 32 है। फॉस्फोरस कितना है? 31 है कि 32 है? फॉस्फोरस इज 31। ऑक्सीजन कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 4। MR निकाल रहा हूँ, MR निकालें जी, मल्टीप्लाइड बाय 100%, बताएं जी क्या है? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। कितना मास है, कितना परसेंटेज मास है एक पर्टिकुलर कंपाउंड में? 28.187। इन सबको कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करें, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करें, दिस डिवाइड बाय दिस, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, और साथ में परसेंटेज का साइन इधर एंड में लगाएं, है? परसेंटेज का साइन कैलकुलेटर में नहीं लगाना ना, फिर वो इसको सिंप्लीफाई कर देगा। परसेंटेज का मतलब है डिवाइड बाय 100, आपने ये साइन एज इट इज लगाना होता है, ये कैलकुलेटर में नहीं लगाना होता, ठीक? अच्छा, ये हम करते क्यों हैं? ये हम करते इसलिए हैं क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एग्जामिनर आपसे पूछे कि मुझे बताओ 250 ग्राम्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट में व्हाट इज द मास, परसेंटेज बाय मास नहीं, व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन। ये हम फर्टिलाइजर्स के लिए करते हैं, हम चेक करते हैं कि यार किस फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा मास होगा नाइट्रोजन का, कि क्रॉप यील्ड के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए बेहतर हो। तो व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन इन 250 ग्राम? तो आपको पता है कि इस पूरे कंपाउंड में 28.187% नाइट्रोजन का होगा, तो 250 में कितना होगा? 25 250 मल्टीप्लाइड बाय 28.187% है। सिंपल सिंपल, खत्म।
इसके एमसीक्यू बहुत गंदे होते हैं, बड़ी सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी नहीं है। सर बताएं, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ सल्फर इन H2SO4। और नेक्स्ट स्टेप क्या है बताएं जी। 180 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना मास होगा सल्फर का। सर ये तो जीनियस तरीका है, अनस बचपन से ऐसे ही पढ़ाता आ रहा हूँ। खत्म करें, शाबाश शाबाश शाबाश। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास भी खत्म है, इसके बाद परसेंटेज यील्ड। सर सर्दी लग रही है, आई एम टू लेजी टू टर्न ऑन द फैन। बेटा फैन का गला दबा दे। अच्छा शाबाश। सर क्या बनता है, मुझे क्या पता क्या बनता है, आप कैलकुलेट करो। सल्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय, देखिए परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास एक चीज नहीं है यार। छोड़ दे, जो चीज अभी तक नहीं पढ़ाई भूल जाए। मैंने आपको कहा था मोल्स बिल्कुल भूल जाए, जीरो से पढ़ ले मेरे साथ। ये चीजों को, टर्म्स को कंफ्यूज ना कर। दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। कितना, कितना परसेंटेज होगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एक पर्टिकुलर कंपाउंड में। यील्ड कुछ और है, वो उसके बात करा रहा हूँ। यील्ड आउटपुट को कहते हैं, वो करा रहा हूँ ना यार, चिल करो। डूइंग इट, आई स्वेयर आई डू इट। शाबाश, खत्म करें इसको। क्या आ रहा है आंसर, क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास आ रहा है सल्फर का। और 180 ग्राम में कितने। अभी ये सेइंग 32.6, लेट्स ट्राई इट आउट। सर मुझे पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो बचपन में ग्रेड 2 के टीचर ने सिखाया था। पार्ट, जो कि सल्फर का मास है, डिवाइडेड बाय होल। होल कितना है, 1 into 2। चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो होगा, कॉम्प्लिकेट करेंगे तो नहीं होगा। 32 + 16 into 4 क्या आ रहा है जनाब। ऊपर 32 है, नीचे 2 + 32 = 34। 34 + 16 × 4, यार मैं खुद कर लेता हूँ। 16 × 4। हमारे टीचर अगर होते हैं ना, हमारे एक प्रोफेसर थे अकाउंटिंग में, तो हमें कहते थे ओ भंगियों, ओ ये वो तो हमें सीधा ये कहते थे। सिंपल कैलकुलेशंस भी वो मेरी तरह कर रहे होते थे खुद। मल्टीप्लाइड बाय 100 है। क्या आ रहा है, 32.65। खत्म। दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास ऑफ सल्फर। डन सर, डन सर। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास सल्फर का इतना है। अब 180 ग्राम में कितना सल्फर होगा, तो सर 180 मल्टीप्लाइड बाय 32.65%। क्योंकि 32 पॉइंट, अच्छा सर ये आपको कैसे डायरेक्ट करें यार, देखो 100, अगर आपके पास 100% हो तो उसमें 32.65 जो है सल्फर है, तो 180 में कितना सल्फर होगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर ऐसे बच्चों की तरह करना है तो वैसे भी कर सकते हो। वो यही है देखो, x × 100, 180 × 32.6 डिवाइडेड बाय 100। और यार ये परसेंट का मतलब ही डिवाइडेड बाय 100 है। आ गया जवाब। ओ यार कैसे 5877 कैसे आ रहा है यार, 58.77। इधर तो मुझे परसेंटेज का साइन नहीं चाहिए, मुझे तो ग्राम्स चाहिए। इधर तो कैलकुलेटर में, बच्चों को ये तक नहीं पता, टीचर ने नहीं बताया कि आप परसेंटेज तो नहीं चाहिए इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, मुझे ग्राम्स चाहिए। इधर परसेंट का साइन मैं सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं फाइलर आर परसेंट में दे रहा हूँ। तो अगर कैलकुलेटर में मैं ये भी पुट करूंगा, वो तो इस 100 डिवाइड बाय 100 कर देगा कैलकुलेटर मुझे। थ्री थ्री टू थ्री 0.03265 दे देगा। सर मुझे पता था, आई एम जस्ट स्लीपी। अच्छा चलो खत्म, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास खत्म, फिनिश्ड। नेक्स्ट, परसेंटेज, परसेंटेज यील्ड, जिसको आप कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी, जिसको आप परसेंटेज एफिशिएंसी, जिसको आप, और परसेंटेज आउटपुट, इफेक्टिव आउटपुट। 50,000 नाम है इसके लिए, नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में ज़्यादातर परसेंटेज यील्ड इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा इसको परसेंटेज यील्ड क्या भला है, सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा और ख़त्म। सर मैं आपको कहता हूँ कि जनाब, आपके पास एक रिएक्शन है, सोडियम की फैक्ट्री लगी है, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स मी सोडियम क्लोराइड है। और जनाबे वाला इसको मैं बैलेंस भी कर लेता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मायदा ने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, और मायदा की फैक्ट्री में ना, शी इज़ यूजिंग 200 kilograms of sodium to produce, to produce 40 kilograms of sodium chloride। मुझे बताओ जी, रट्टे ना मारे, एक्चुअल theoretical रट्टे ना मारे प्लीज, मैंने अपना गला दबा देने अगर रट्टे मारे हुए हैं आपने। भूल जाए ना, जो केमिस्ट्री पहले सीखे भूल जाए। अब ये मैराथन का क्या मकसद है कि जो आपके टीचर 3.5 साल में नहीं कर पाए वो मैं कर रहा हूँ ना। तो जो पहले आपने पढ़ा हुआ है भूल जाओ। अच्छा अब सुनिएगा, 200 kilograms ऑफ सोडियम ने रिएक्ट किया
और क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और 40 किलोग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड बना। क्या ये एक लिमिटिंग एक्सेस का सवाल है? बच्चा कहेगा हाँ सर, दो डेटा गिवन है। ओ नहीं, और नहीं। लिमिटिंग एंड एक्सेस में दोनों डेटा आपको रिएक्टेंट्स के गिवन होते हैं, और वो ऐसा डेटा होता है जिससे दोनों से मोस्ट फर्क। ये तो इधर एक रिएक्टेंट गिवन है और एक इधर प्रोडक्ट गिवन है। तो सर ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास का सवाल नहीं है, ये परसेंटेज यील्ड का सवाल है। कॉम्पोजिशन बाय मास तो सिंपल परसेंटेज निकालना था, ये परसेंटेज यील्ड का सवाल है। क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं पूछता हूँ मायदा से कि मायदा, मैंने आपको सीएफओ लगाया है, सीईओ लगाया है, मायदा आप मुझे बताएं कि फैक्ट्री की एफिशिएंसी कितनी है। मायदा कहती है सर अल्हम्दुलिल्लाह हम 200 किलोग्राम से 40 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड हर दिन बनाते हैं। मैं कहता हूँ रुको मायदा, वेट अ मिनट, यू आर सेइंग यू आर मेकिंग 200 kilograms और यू आर मेकिंग 40 kilograms ऑफ सोडियम क्लोराइड आउट ऑफ 200 kilograms ऑफ सोडियम। मैं चेक करता हूँ कि कितना बन सकते हैं, तो मैं कहता हूँ ये तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली। फैक्ट्री में मायदा, जो फैक्ट्री में सीएफओ लगी है उधर ये हो रहा है कि 200 किलोग्राम से वो 40 किलोग्राम बना रही है। मैं चेक करना चाहता हूँ सिंपल स्टोइकियोमेट्री की, 200 किलोग्राम से कितना सोडियम क्लोराइड बनना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री की तू जब कोई लॉसेस ना हो। मायदा मुझे कहते नहीं नहीं सर ना करें कैलकुलेट, देखिए फैक्ट्री में मशीनें खराब होती हैं, लॉसेस खराब होते हैं, सर प्लीज ना करें। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैंने चेक करना है, जरा चेक करने दो। अगर कोई लॉसेस ना होते थियोरेटिकली कितना बन सकता था। मैं इस केजीज को दोनों साइड पे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड में एक दफा मल्टीप्लाई बाय 3000 करोगे, एक दफा डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो जब केजी केजी होता है, टन टन दिया होता है, जस्ट कंसिडर देम एज ग्राम्स। अच्छा, तो मैं कहता हूँ 200 ग्राम्स ऑफ सोडियम से कितना बनता है। वी नो हाउ डू यू कैलकुलेट सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप, convert the data into moles. Second step, use the equation to find the moles of sodium chloride. Third step, convert it into mass. तो मैं कहूँगा mass इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। मास कितना है? 200 ग्राम। मोल्स कैलकुलेट करें, मोलर मास कितना है सर? मोलर मास सोडियम का 23 मोल्स इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 23, व्हाट डू वी गेट? मैं theoretically जरा सिर्फ स्टोइकियोमेट्री इस्तेमाल करूं, जैसे आप पहले स्टोइकियोमेट्री पूरी आपने की है, वही स्टोइकियोमेट्री करनी है। तो 8.69 ग्राम्स ऑफ सोडियम, सॉरी 8.69 मोल्स ऑफ सोडियम हमारे पास है। लेकिन आई डोंट नीड मोल्स ऑफ सोडियम, व्हाट डू आई नीड मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो यूज द इक्वेशन टू स्टिच द टू। आपको पता है कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम गिव्स मी 2 मोल्स ऑफ NaCl। सो इतने से कितने मोल्स ऑफ NaCl बनेंगे? अगर 2 मोल ऑफ सोडियम से 2 मोल्स ऑफ NaCl बनेंगे तो 8.69 से कितना बनेगा? N, सेम सेम है सेम, 8.69 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, लेकिन आई डोंट नीड मोल्स, आई नीड मास। सर जी एम नहीं लेते फॉर मोल्स, एम नहीं लेते फॉर मोल्स, एम ही है। अच्छा, नाउ मास कैलकुलेट करें सर। NaCl का मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। मास कितना है सर? निकालना है। मोल्स कितने? 8.69। मोलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना है? सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, व्हाट डू यू गेट? 58.5। बताएं जी क्या मास आ रहा है? टाइम आ गया मायदा को फायर करने का, टाइम आ गया। 508.69 ग्राम्स। तो मायदा को मैं कहता हूं मायदा, इफ देर वर नो लॉसेस, theoretically स्पीकिंग अगर कोई लॉसेस ना होते, 100% यील्ड होता। 100% यील्ड का मतलब है आउटपुट, 100% आउटपुट होता, 100% एफिशिएंसी होती फैक्ट्री की, तो यू शुड हैव गॉटन 508.69 ग्राम्स। आपको कितने ग्राम्स मिल रहे हैं? 40। मायदा कहती नहीं नहीं सर बहुत अच्छी एफिशिएंट कंपनी है, नहीं नहीं सर मुझे ना फायर करे। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, अगर कोई लॉसेस नहीं हो। मायदा कहती देखिए सर लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, इनपुट लॉस होता है, आउटपुट लॉस होता है, केजी नहीं है ना। मैंने के दोनों साइड पे इग्नोर कर दिया, टन टन दोनों साइड पे इग्नोर कर दिया, मैंने पूरा ग्राम्स ही कंसिडर कर दिया, राइट। तो मायदा कहती नहीं 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 सर ना करे फायर। मैं कहता हूँ देखो तुम्हारी फैक्ट्री में 40 ग्राम्स बन रहे हैं, तो 40 ग्राम कितना परसेंटेज यील्ड होगा? 40 ग्राम कितना परसेंट आउटपुट है? सर निकालें, एक्स इज इक्वल टू, फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 508.69। बताएं जी कितना आ रहा है? कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है? मिस का कितना परसेंटेज है? 4000 डिवाइड बाय 508.69। बताएं जी। मैंने परसेंट का साइन चूंकि एंड में लगाना है, तो ये परसेंट परसेंट इधर ना लगे, सिंपल मल्टीप्लाई करें, एंड में मैंने परसेंटेज का साइन लगाना है। व्हाट इज द परसेंटेज बाय यील्ड? यार 4000 डिवाइडेड बाय 4, 7.863%। मायदा को मैं उसी टाइम फायर कर देता हूँ, मायदा को मैं उसी टाइम फायर कर देता हूँ। क्यों? मायदा को मैं कहता हूँ मायदा इतना ये सिला दिया तूने मुझे, मैंने तुम्हें फैक्ट्री का CEO बनाया है, और तुम क्या कर रही हो? तुम जो है, आप जो है, आप कहना चाहिए, आप जो है, आप सिर्फ
7.86, मतलब ये बाकी सारा कितना परसेंट आउटपुट लॉस हो रहा है, कितना परसेंट मुझे नुकसान दे रही हो आप। आपको चाहिए था कम से कम 508 के कुछ ना कुछ करीब तो बनाते। अच्छा, ये जो बच्चे 786 कह रहे हैं, खुदा की खौफ करें, आपको कैलकुलेटर नहीं कर रहा था इस्तेमाल, आपके मैथ के टीचर क्या कर रहे हैं? परसेंटेज का साइन लगा रहा हूँ, इसको और इसको भूल जाएं, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करें, एंड में एक साइन लगा दें। मैथ्स की टीचर को कहें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना सिखाए प्लीज यार। मतलब पता नहीं ये टीचर्स आजकल क्या करें, मुझे आप पे गुस्सा नहीं चल रहा, मुझे मैथ के टीचर पे गुस्सा आ रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, ये बच्चों को इतना तक नहीं सिखा सकते कि परसेंट का साइन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सर जनाबे वाला, मैं मायदा को फायर करता हूँ, दिस इज व्हाट परसेंटेज यील्ड इज, और परसेंटेज आउटपुट इज, राइट। देख लें सर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास है ये बाय मास है, बताओ जी कितना नाइट्रोजन है, अभी किया है, ये बाय मास है, ये यील्ड नहीं है, ये यील्ड है कि बाय मास है? अच्छा, बाय मास एंड यील्ड एक साथ है, एक साथ है। तो ये किसका सवाल है? कॉम्पोजिशन बाय मास निकालो नाइट्रोजन का इसमें, तो ये तो आप सिंपल सिंपल कर सकते हो इससे पहले, लेकिन मैंने सिर्फ परसेंटेज कॉम्पोजिशन यील्ड का कराना है, यील्ड का। यील्ड कितना है? यील्ड किधर है यार? ये सर, इन दिस रिएक्शन द प्रिडिक्टेड यील्ड ऑफ NO इज 512 ग्राम। आई एम अनॉयड विद द मैथ टीचर खुशी, आई एम नॉट अनॉयड विद यू गाइस, आई एम अनॉयड विद द मैथ टीचर कि ये आपको कैलकुलेटर तक नहीं सिखाते यार पढ़ाना, किधर से पढ़ते हैं ये लोग? किधर से ये टीचर्स आ जाते हैं? अच्छा जी, अब देखिएगा, वो कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन द प्रिडिक्टेड यील्ड इज 512 ग्राम एंड द एक्चुअल यील्ड इज 384 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय यील्ड। देखो प्रिडिक्टेड कितना चाहिए, प्रिडिक्टेड 512 ग्राम चाहिए, लेकिन एक्चुअल कितना है? तो सिंपल परसेंटेज निकालने को कह रहा है सर। एक्चुअल है 384 और प्रिडिक्टेड कितना है? 512 इंटू 100%, कितना है परसेंटेज बाय परसेंटेज यील्ड? हाँ जी, परसेंटेज यील्ड कितना है सर इस रिएक्शन का? प्रिडिक्टेड मतलब वो कह रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री अगर मैं करूं, देखो 512 ग्राम आते अगर कोई लॉसेस ना होते, 512 ग्राम आते अगर कोई लॉसेस ना होते, 100% होता, इसको कह रहे हैं प्रिडिक्टेड यील्ड। लेकिन इन एक्चुअल 384 ग्राम्स आ रहे हैं, तो ये कितना परसेंट होगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 384 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 512, तो 75% आ रहे हैं। तो इतना परसेंट है NO का। आगे जाए, इसका ये सवाल करें, बल्कि ये तो सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है। मैं जरा सिर्फ ना लॉजिकली ये करें, शाबाश। ये सवाल करें, पार्ट ई करें, शाबाश, पार्ट ई करें, शाबाश, ये सवाल है, शाबाश, जल्दी करें, फिर मैंने इंपेरिकल मोलेकुलर फॉर्मूला भी सिखानी है। इसके बाद इंपेरिकल मोलेकुलर फॉर्मूला रह गया और टाइट्रेशन रह गई है, खत्म। मैं पानी पीता हूँ, आप लोग इसको कह देखो। 15.2 grams ऑफ आयरन सल्फेट was heated and formed 4.8 grams ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब देखें, ये फैक्ट्री में हो रहा है, सोचें इसको कि यार ये रिएक्टेंट से इतने इतना ये फैक्ट्री में हो, फैक्ट्री को भूल जाओ फिलहाल, फैक्ट्री को भूल जाओ फिलहाल। ये जो रिएक्टेंट है, स्टोइकियोमेट्री जो इतनी आप लोगों ने इससे पहले की है, इस रिएक्टेंट से कितना बनना चाहिए था theoretically स्पीकिंग, तो वो कैलकुलेट करें। तो वो कैलकुलेट करें जनाब, एक दफा वो आ जाए तो दैट इज 100%। वो थ्रेटिकली जो आता है वो तो कोई लॉसेस, थ्योरी में तो कोई लॉसेस नहीं होते, तो जो वो मैथ्स आते हैं दैट्स 100% आउटपुट। लेकिन आपके पास तो सिर्फ इतना आउटपुट है, तो इतना आउटपुट कितना कितना परसेंटेज है? क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, मैं पानी पी के आया। हैं सर, पता नहीं किधर से टीचर्स आ जाते हैं, मुझे तो अभी टेंशन हो रही है मैथ के लिए, नहीं टेंशन ना लें, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं पानी पी के आया। कैलकुलेटर तो सिखाना चाहिए ना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम्म, हम्म। शाबाश, जल्दी 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 खत्म करें, खत्म करें, शाबाश। 60%, 60%, चलो जी लेट्स सी। तो वो कह रहे हैं कि इतना फॉर्म हुआ है, फॉर्म को हम बाद में देखेंगे, मैदा की फैक्ट्री में जो हो रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग स्टोइकियोमेट्री के थ्रू 15.2 ग्राम से कितना आयरन ऑक्साइड बनना चाहिए। तो सर पहला स्टेप स्टोइकियोमेट्री का क्या है? कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। 15.2 मास है, मोल्स निकालने हैं, मोलर मास कितने हैं इसका? 152। N इज इक्वल टू
15.2 डिवाइडेड बाय 152, व्हाट आर द मोल्स? ये लिखा करें किस चीज़ के मोल्स निकाल रहा हूँ, आयरन सल्फेट। अपने लिए अगर आप लिखते हैं ना फिर आपसे भूलेगा नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे। आयरन सल्फेट के मोल्स निकालने क्या आ रहे हैं यार? 0.1 श्योर, 0.1 मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट। अब मुझे आयरन सल्फेट नहीं चाहिए, मुझे आयरन ऑक्साइड चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट से कितना आयरन ऑक्साइड बन रहा है, यूजिंग द इक्वेशन टू स्टिच द टू। 2 मोल से अगर एक बन रहा है तो 0.1 से कितना बनेगा, एन क्रॉस मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू 0.05 मोल्स। इतने मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड आना चाहिए। वही स्टोइकियोमेट्री कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा मुख्तलिफ, सिर्फ आखिर में एक स्टेप आ जाएगा। सर गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहा हूँ? 115.2 डिवाइडेड बाय 152, 0.1 ही आ रहा है, और ये आयरन सल्फेट है, और ये इसमें क्या गलत है यार? Fe2SO4, ये FeSO4 लिखा हुआ है, 2SO4 किधर से आ गया यार? अच्छा। मोलर मास FeSO4 का 152 है। अच्छा, now you've gotten the moles of iron oxide. Now you don't need moles of iron oxide. You need what? You need the mass. Mass equal mole times molar mass. आयरन ऑक्साइड के मोल्स कितने हैं? 0.05 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ आयरन ऑक्साइड इज 160। करें जी, क्या आ रहा है? 7.6। क्या मतलब सर को कैसे कह रहे हैं? नहीं नहीं, कह सकते हो, आप कह सकते हो, अगर गलती हो तो बता तो सकते हो ना, क्या हो गया? Fe2O3। तो दिस इज द मैथ्स, theoretically स्पीकिंग, अगर कोई इस पे, इसके बाद आपने अपने से आप बात करनी है। theoretically स्पीकिंग अगर मैं अपने से बात करूं कि इतने ग्राम्स बनने चाहिए थे, अगर कोई लॉसेस ना होते, मतलब 100% आउटपुट अगर आता, कोई लॉसेस ना होते। सर 8 है, 7.6 नहीं है। यार कैलकुलेशंस आप लोग कर रहे हो, इस पे अब मैं क्या कह सकता हूँ? कैलकुलेटर तो आप लोग सही इस्तेमाल करो ना यार। तो अगर 8 ग्राम्स, अगर अगर 100% आउटपुट होता, कोई लॉसेस ना होते, तो 8 ग्राम्स बनते। लेकिन बन कितने रहे? अब देखें मायदा की फैक्ट्री में बन कितने रहे? 4.8 ग्राम्स। तो 4.8 ग्राम्स कितना परसेंट आउटपुट है? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, और 7 परसेंटेज का साइन बस लगा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 60%। तो मायदा आपकी फैक्ट्री में 40% लॉसेस हो रहे हैं। आपको पता है, कभी कभी सवाल ऐसे नहीं आया, मजे की बात बताऊं, ऐसे सवाल आज तक टेस्ट नहीं हुआ कि कितना परसेंट लॉसेस हो रहे हैं फैक्ट्री में। तो अगर मैं आपसे, अगर मैं एग्जामिनर होता ना, तो मैं 2025 के पेपर में ये देता, व्हाट इज द परसेंटेज लॉसेस इन दिस फैक्ट्री। तो जिन्होंने एक्चुअल ओवर थियोरेटिकल या थियोरेटिकल ओवर एक्चुअल रट्टे मारे होते, तो उनसे तो चीज गई। सर इंशाल्लाह 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये लॉस वाला नहीं, अल्लाह ना करे। मैं होता, मैं जालिम होता, जालिम कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करता। सिमिलरली देखो, अच्छा ये सवाल देखो, अब इसको वो डिफरेंट मैथ्स, अब मैथ्स थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। वो आपको कह रहे द स्टूडेंट स्टार्टेड विद दिस मच ऑफ दिस मच सोडियम क्लोराइड, तो इससे आप मोल्स निकाल लेंगे सोडियम क्लोराइड के। वो कह रहे हैं कि यार मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड तो निकल गए हैं, मुझे बताओ द यील्ड ऑफ NaNO3 क्रिस्टल्स वाज 90%। तो मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड से जब आप मोल्स ऑफ NaNO3 निकाल लोगे, मोल्स ऑफ NaNO3 निकालोगे और इसे फिर मैथ्स में कन्वर्ट कर दोगे, बट दैट्स थेरेटिकल। वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ 90% उसका जो ये आपने कैलकुलेट किया, इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो 90% है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देना 90% से, तो एक्चुअल मास है। करूँ कि आप कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई मुख्तलिफ सवाल हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, सिर्फ ये कि थोड़ा दिमाग इस्तेमाल, वही सारी स्टोइकियोमेट्री करें, जो मोल्स आए वो आपको, बजाय ये कि वो आपसे कैलकुलेट कराए परसेंटेज, अच्छा करा दें। सर मैथ्स ये आपको मोल्स दिए और वॉल्यूम दिया है, एन इज इक्वल टू CV। मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कॉन्सेंट्रेशन 0.2, वॉल्यूम कितना है 20 डिवाइडेड बाय 1000। करें जी, मोल्स कितने आ गए? 0.2 इंटू 20 डिवाइड बाय 1000, 4 इंटू 10 इज पावर -3 मोल्स। ये NaCl के मोल्स आ गए। सर मास ऑफ NaNO3 निकालना है, तो NaCl के मोल से पहले NaNO3 के मोल में जाए, 1 मोल ऑफ NaCl मेक्स 1 मोल ऑफ NaNO3। तो अगर इतने मोल्स होंगे NaCl के, तो कितने मोल्स ऑफ NaNO3 आएंगे? इक्वेशन इस्तेमाल किया, मेरे पास मोल्स ऑफ NaNO3 भी सेम आए, दीज आर द मोल्स ऑफ NaNO3, राइट, क्योंकि 1:1 है। Now you have the moles of Na3, convert it into mass. Mass equal mole times molar mass. Mass में निकालें सर, 4 इंटू 10 इज पावर -3। मोलर मास ऑफ NaNO3 कितना है? नहीं दिया सवाल में, कैलकुलेट करें। 23 + 14 + 16 टाइम्स 3, क्या आ रहा है मोलर मास?
बताओ जी, मोलर मास क्या आ रहा है? मोलर मास कैलकुलेट करें, 23 + 14 + 16 × 3। हाँ जी। 85। 85। तो इसको 85 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है? आए, क्या आ रहा है सर? 0.3। 0.3 आ रहा है, श्योर? 0.34 ग्राम्स। अब वो कह रहे हैं सर 0.34 ग्राम्स आ गए। NaNO3 का मैस 0.34 ग्राम्स आ गया। डन सर। दिस इज द मैस ऑफ NaNO3 नाउ। ये कह रहे ये जो मैस है ये तो आपने थेरेटिकली बनाया, फैक्ट्री में इसका सिर्फ 90% बनता है। तो जो आपको बचपन में सिखाया होता है, 250 ऑफ, 2% ऑफ 250, 3% ऑफ, और टीचर रट्टा लगाते ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वो यही है कि अगर 90% इसका सिर्फ 0.34 ग्राम्स का 90%, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो कह रहे हैं 0.34 ग्राम्स का 90% बनता है ऑफ, 90% ऑफ 0.34 ग्राम्स। 30.6। 30.6 आ रहा है। वो नहीं यार, क्या हो गया? खुद कर लेते हैं। 0.35 × 90%। 0.306। 0.306। ये 30 कैसे आ गया भाई? खत्म। फिनिश्ड फिनिश्ड। एनी क्वेश्चंस? खत्म खत्म खत्म। ये परसेंटेज यील्ड है, और ये उसका एक दूसरा मुख्तलिफ अल्टरनेट क्वेश्चन आ गया, तो चलो आपका ये भी हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर क्या है? एम्पेरिकल एंड मोलेकुलर फॉर्मूला। और सिर्फ टाइट्रेशन रह जाएगी, वो खैर मैंने बहुत डिटेल में कराई हुई है, बस सही है। सर परसेंटेज साइन इज लिटरली कंफ्यूजिंग, मैथ सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ा देता लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। एम्पेरिकल एंड मोलेकुलर फॉर्मूला। मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है सर? आसान है, टाइट्रेशन करा दे यार, बल्कि मेरा बस यार, मेरी बस हो गई। एम्पेरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला और टाइट्रेशन रह गया। एम्पेरिकल मोलेकुलर फार्मूला वैसे भी बड़ा आसान है यार। क्या करते हैं, आपको परसेंटेजेस दी हुई, डिवाइड बाय दी AR, सिंपलेस्ट रेशो से डिवाइड करें और एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। और उसको मोलेकुलर फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला को मोलेकुलर फार्मूला सर, ठीक है, बस आप आराम करें, ठीक है ना, सही है। और टाइट्रेशन कैसे करते हैं? N = CV, इक्वेशन इस्तेमाल करें, N = CV। पिछले मैराथन में कराया हुआ है यार। अब मैं थक गया हूँ बस यार, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कराऊं कि बस बस कर दूं? एम्पेरिकल मोलेकुलर फार्मूला आसान है यार, उसमें तो कुछ भी नहीं है। कल करें? नहीं, बस फिनिश्ड। सर नो, बस कर दे। चलें, ओके जी, चलो कल, कल देख लेते, लेट्स सी। इफ टुमारो आई, यार मुझे ऑफिस में इतना ज़्यादा काम होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन चलो लेट्स सी। अगर कल होगी तो 4 बजे हम क्लास रख लेंगे कल। तो कल मैं ये एम्पेरिकल मोलेकुलर फार्मूला भी करा दूंगा। लेकिन गाइस वन मोर थिंग, अच्छा ये परसेंट प्रार्थना आपके लिए मैं परसेंटेज करा देता हूँ उस टाइम तक, ये परसेंटेज देख लें। मैं जब कहता हूँ आई गॉट 7/15 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अगर 7/15 मुझे मेरे मार्क्स मिले, मैं परसेंटेज में फाइंड करना चाहता हूँ, परसेंटेज में फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मल्टीप्लाइड बाय 100। मैथ्स में आप अपने से कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो? मैथ्स में आप अपने से कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो? नहीं। तो आप जब मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हो, हम इसके साथ परसेंटेज का साइन लगाते हैं। क्यों साइन लगाते हैं? बिकॉज परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 100 मल्टीप्लाई भी कर रहे हो आप, और 100 डिवाइड भी कर रहे हो आप। अब मैं कह रहा हूं मुझे आंसर दो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो जब आप 7 × 15 मल्टीप्लाइड बाय 100% करते हो, मैंने उस परसेंट को खोल के आपके सामने ये दिखा दिया। 7 ÷ 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें प्रार्थना, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें प्रार्थना, क्या आता है? 7 ÷ 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। 7 ÷ 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आ रहा है? 46.47। अब इसको डिवाइडेड बाय 100 करें। अब इसको डिवाइडेड बाय 100 भी करें। क्या आ रहा है? इसको डिवाइड बाय 100 करें, क्या आ रहा है? ये डिवाइड बाय 100, अगर मैं अपने से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, ये क्या आ गया? 0.47। अब अगर मैं कहता हूं प्रार्थना मुझे जवाब चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंट का क्या मतलब है? इस डिवाइड बाय 100 को मैं एक साइन देता हूं, वो क्या होता है? वो ये होता है, परसेंट।
तो अगर इस डिवाइड बाय 100 को मैंने इस साइन की कॉनोटेशन दे दिया, इस साइन की मैंने नोटेशन दे दी कि इस डिवाइड बाय 100 को आज के बाद मैं परसेंट बुलाऊंगा। तो अगर इधर मैं, मुझे अगर परसेंट में आंसर चाहिए तो क्या फिर मैं डिवाइड बाय 100 करूं? अगर मैं ये साइन लगा रहा हूं, इस साइन का क्या मतलब है? आई एम रिप्लेसिंग दिस डिवाइडेड बाय 100 विद दिस साइन राइट हियर। तो इस साइन को अगर मैं खोलूंगा तो फिर ये आएगा, अगर इस साइन को मैं नहीं खोलना चाहता, मुझे ये साइन चाहिए, तो मैं ये डिवाइड बाय 100 जो है छोड़ के परसेंटेज का साइन लगा लूंगा। नाउ यू गेट इट प्रार्थना। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ 46.67% आपके आए हैं, और मुझे आप एक बताएं ये 250 के कितने होते हैं? 250 ग्राम्स का 46.67% कितना होता है? अब 250 ग्राम्स का प्रार्थना 46.67% कितना होता है? 250 ग्राम्स का 46.67% कितना होता है? मुझे आंसर ग्राम्स में चाहिए। 250 ग्राम्स का कितना होता है कि मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए प्रार्थना? आई नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स और परसेंटेज। 250 ग्राम का इतना परसेंट कितने ग्राम्स बनता है? मुझे ग्राम्स चाहिए ना प्रार्थना। आई नीड, नो नो, आई डोंट नीड परसेंटेज, परसेंटेज तो मेरे पास ये है ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि 250 ग्राम का 46.67% कितने ग्राम्स होता है? ग्राम्स चाहिए। आई डोंट नीड दिस साइन एनी मोर। इफ आई डोंट नीड दिस साइन, मैं क्या करूंगा? कैलकुलेटर में या ये साइन डाल दूंगा या इस साइन को खोल के डिवाइड बाय 100 लगा लूंगा। राइट? सो नाउ यू आर गोना गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो इसीलिए कैलकुलेटर में परसेंट का साइन कब लगाना है? जब परसेंट नहीं चाहिए। लेकिन कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन कब नहीं लगाना है? जब आपका फाइनल आंसर परसेंटेज में आपको चाहिए। तो फिर अगर आप कैलकुलेटर में परसेंट का साइन लगाओगे, कैलकुलेटर आपको ये जवाब देगा। तो हमने साइन नहीं लगाना है। बिल्कुल 116.675 बिल्कुल सही है ना। तो ये ग्राम्स आ जाएंगे आपके पास कि इतना परसेंट अगर इसका मैं करूं तो इतने ग्राम्स बनते हैं। परसेंट का साइन निकल गया। अब देखिए, जब मैं कहता हूं कि 503 ग्राम्स अगर 100% है, तो 20 ग्राम्स कितना परसेंट होगा? ठीक है, 20 ग्राम्स कितना परसेंट होगा? तो x इज इक्वल टू 20 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 503, ऐसे ही है। 20 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 503। असल में हुआ क्या है, मैंने क्या किया, मुझे परसेंटेज का साइन एंड में चाहिए, तो क्या मैं कैलकुलेटर में परसेंट परसेंट डालूंगा? मुझे परसेंटेज का साइन एंड में चाहिए प्रार्थना, तो नहीं डालूंगा। आई नीड द, अगर आप कैलकुलेटर में परसेंट परसेंट डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने वो डिवाइडेड बाय 100 भी कर दिया कैलकुलेटर में। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसका एक सिंबल चाहिए जो कि परसेंट का साइन है। इसीलिए इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसके साथ ये परसेंट का साइन लगाऊंगा। नाउ यू गेट इट प्रार्थना। तो साइन हम तब लगाते हैं, हम कैलकुलेटर में परसेंटेज का साइन तब इंसर्ट करते हैं जब हमें एंड में परसेंटेज का साइन नहीं चाहिए होता। वी जस्ट सिंप्लीफाइड, ओपन इट अप। राइट? लेकिन जब हमें चाहिए होता है तो फिर हम परसेंटेज का साइन कैलकुलेटर में कतई नहीं पुट करते। हम कैलकुलेटर में सिंपल सॉल्विंग करते हैं और एंड में परसेंट का साइन लगाते हैं। क्योंकि अगर कैलकुलेटर में आपने ये परसेंट लगा दिया तो इसका मतलब है कैलकुलेटर आपका क्या करेगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 कर देगा। तो ये तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। और फिर एंड में आप जब साइन भी लगा लेंगे तो आपने दो दफा कर दिया, एक दफा डिवाइड भी कर दिया और एक दफा फिर साइन लगा दिया। तो नाउ यू गॉट इट प्रार्थना। तो दिस इज व्हाट, मैं इसको और भी मैं इलेबोरेट करके पढ़ा सकता था, क्योंकि आई एम अ फाइनेंस गाय, हमारा सारा दिन नंबरों के साथ काम होता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। सर आई विश यू आर माय मैथ टीचर। सर एम्पेरिकल फार्मूला में वो मैथ्स मोल्स एंड रेशो वाला है ना, वो आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं अभी? यू शुड टीच ए लेवल मैथ। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ए लेवल मैथ शायद नहीं भाई, ना ओ लेवल ना ए लेवल। देखो मेरा शौक केमिस्ट्री का है, मैं पढ़ा मैथ भी सकता हूँ, फिजिक्स भी सकता हूँ। नहीं, मैं क्विट नहीं करूंगा। जब मैं क्विट तब करूंगा, आई विल आई विल क्विट टीचिंग ओनली व्हेन आई थिंक आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ एंड आई एम नॉट डूइंग इट एज अ हॉबी एनी मोर। इफ आई स्टार्ट डूइंग इट, यू नो, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, लाइक इट्स नॉट अ हॉबी और एम ही, बस मेरा बस दिल से उतार रहा हूँ, सर से उतार रहा हूँ, तो मैं फिर कर लूंगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अनकरीब मैं करूंगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैसेजेस दैट आई गेट, द अमाउंट ऑफ होलसम मैसेज। मैंने एक दफ़ा क्विट किया था ऑल इन ऑल, फिर कुछ बच्चे मेरे घर पहुंच गए थे। उन्होंने मेरी अम्मी को, देवर इन माय सिस्टर की क्लास में थे, उसने उनसे जूनियर थे, तो वो हमारे घर का एड्रेस उनको पता, वो आ गई थी कि सर को कहीं पढ़ाएं। फिर मुझे अम्मी ने कसम दिलाई कि कम से कम ये ओ लेवल पढ़ाना कभी नहीं छोड़ना है, मेरी कसम। तो मैंने कहा चलो, अब्बू के लिए यूके नहीं गया, अम्मी के लिए इधर आ जाते हैं, ठीक है कोई नहीं, पढ़ाता रहूंगा। लेकिन मेरी अम्मी को मैंने कहा था, मेरा एक शर्त यह है कि जब मेरा दिल उठ जाएगा और मैं समझूंगा कि मैं बेहतर नहीं कर पा रहा, मैं बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा और मैं कॉम्पिटेंट अब नहीं रहा, तो मैं तब छोड़ूंगा। अम्मी ने कहा हाँ तब छोड़ दें।
तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी टॉप ऑफ द गेम है। जब मुझे अंदाजा हो जाएगा कि नहीं यार बस अब औरों को भी मौका देना चाहिए, फिर छोड़ दूँ। सर आपको कैसे याद रह जाता है? लाइक मुझे तो एक साल बाद आईएसएल और पाक स्टडी भूल गया, क्योंकि मैं पढ़ा ही रहा हूँ। जब से मैंने चीज़ें सीखी हैं, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो एक चीज़ जब आप 7 6 7 सालों से पढ़ा रहे हो, वही चीज़ बार 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 बार, तो रट जाती है। सर अल्लाह करे आपकी मॉम ए लेवल केमिस्ट्री पढ़ाने को कह दे। नहीं, वो नहीं कहेंगे, उनको पता है कि मेरी लाइफ, माई रूटीन इज़ वेरी वेरी टफ, माई रूटीन इन जनरल इज़ वेरी टफ। कल मैं एम्पेरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला भी करा दूंगा और टाइट्रेशन भी करा, 3 पार्ट्स में आपका मैराथन हो जाएगा, ठीक है, 6 घंटे में पूरा मोल्स। लेकिन शी नोज कि माई रूटीन इज़ वेरी टफ, आई एम ऑलरेडी ऑन 2 आवर्स ऑफ स्लीप, 3 आवर्स ऑफ स्लीप। तो उनको पता है वो मुझे और बर्डन नहीं करेंगी। सलाम है सर आपको, बस दुआओं में याद रखें, और सबको जितना हो सके बताएं। बिकॉज आई नो दे आई गेट सो मेनी मैसेजेस, हमेशा जब पेपर्स ख़त्म होते हैं ओ लेवल्स में, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, काश सर आपके बारे में पहले पता होता, काश सर पहले पता होता, थोड़ी बहुत हेल्प हो गई, डी से बी आ गया सर, लेकिन काश पहले पता होता, ये होता वो। तो बच्चे बहुत रिग्रेट करते हैं, और वो किस की वजह से होते हैं? वो कुछ सांप दोस्तों की वजह से, तो खुद ये स्टार्स ले लेते हैं मेरे से पूरा पूरा पढ़ के, और बाकियों को नहीं बताते। तो बताया करें, कुछ नहीं होता है। चलो गाइस, ओके गाइस, सी यू गाइस लेटर एलिगेटर्स, बाय बाय, चाओ चाओ।